So, good evening, everyone. Today's session is session 10, and topics are power of letting go, Mercury, and we will also cover Vishnu Sahasranam, how it works, why sometimes it never works. Anyways, so we are aware of the chakras. This is root chakra, sacral chakra, solar plexus, heart chakra, throat chakra, ajna chakra, and crown chakra. So, Krishna तो है ही हमारे पास. Ajay So, ji, people waiting to join, I guess. people waiting to join. I can't see Yeah, Vidhi actually. Sharma also. Vidhi Sharma Really? also, I think. Yeah. I saw in the group notification. I can't see request actually. Hmm, Unless I'm missing something. I don't know. There's the messages are there in the WhatsApp group. Achha. I have no idea. I can't see actually. चलिए ठीक है, Maybe let's there see. is some internet issue at with the end. Hmm. Chaliye. So I'll quickly cover first power of letting go. Very, very short, briefly. I'll cover just 10-15 minutes. I wanted to do it in detail, but I am not feeling energy kam hai aaj mera. So this is root chakra, sacral chakra, solar plexus, heart chakra, throat chakra, and ajna chakra and the crown chakra. Basically. Okay. So here this is memories. This is ego. All the Chadvikars are laid here. Okay, that we have covered last sessions also. Waiting room I can see now. No, that's clear. So all the six Chadvikars stays in each chakras. Okay, so I'm just covering the two जो basics है आपके. Comparison, insecurities. This is all root chakra. Ego. This is all sacral chakra. So if you notice our ego, past life memories, insecurities or comparative analysis, yani comparison, constant comparison. These two comes under the Shad Vikars we have. I have covered in the course. These two chakras constantly pull towards downward gravity. And this is why our cosmic energy, the aura, it never goes up. So unless you are trying to pull it up, it will always go down. Now, if it is you're constantly pulling downward towards ego, past life memories, insecurities, comparisons, so ये क्या कर रहा है आपको? ये सारा का सारा क्या दे रहा है आप? Attachment. The more egoist a person is, he/she, more obsessed with materialistic things, pride, prestige, big car, materialistic wealth, etc. जितना ईगो ज्यादा है उतना अटैचमेंट ज्यादा है. जितना पास्ट लाइफ मेमोरीज में हो उससे ज्यादा अटैच्ड हो. आपने देखा है कई लोग पुरानी फोटोज डिलीट नहीं करते हैं, कई लोग पुराने मैसेजेस डिलीट नहीं करते, ईमेल्स मोर देन 10 years दे कीप इन आर्काइव. जब हम बड़े हो जाएंगे ना इसको देखेंगे, इसे निहारेंगे, उसको कभी नहीं देखते आप. So, so people who live in past lives, memories, insecurity, comparisons, or ego, they are constantly pulling their energy, cosmic energy downwards, and this created a loop called attachment. आप अटैच हो किसी चीज से, विच ऑल्सो कम्स अंडर छठ विकास एक्चुअली. ये जो अटैचमेंट है, ये क्या करती है, हमें कॉन्स्टेंटली प्रारब्ध से बांधती है. प्रारब्ध इज द ऑल द संचित कर्मा स्टोरेज इन द डेटा सेंटर, जिसका जो एडमिन है वो केतु है. वो प्रारब्ध लेके आप आए हो संचित कर्मा से. जितना आप इस प्रारब्ध की तरफ जाते हो उतना आपकी लाइफ जकड़ी हुई लगती है. आपके पास जितना प्रारब्ध के क्लोज आप जिंदगी जियोगे
आपकी साथ फ्रीडम उतनी ही कम होगी। जितना आप फ्री विल से जियोगे उतनी फ्रीडम आपकी ज्यादा होगी। बिकॉज प्रारब्ध आपको बांधता है, प्रारब्ध आपको रोकता है, प्रारब्ध कहता है एक रास्ते में चलो और ऐसे ही चलना है, बिकॉज योर लाइफ डेस्टाइन्ड टू बी लाइक दिस। और फ्री विल कहती है कि आई विल चूज माई पाथ एज पर माई लाइकिंग। सो फ्रीडम किस में है, फ्री विल में है कि प्रारब्ध में है? फ्री विल। फ्री विल में फ्रीडम। ओके। और प्रारब्ध में फ्री विल, सॉरी, फ्रीडम नहीं है, बट प्रारब्ध कम्स फ्रॉम अटैचमेंट। जितना आप अटैच हो चीजों से उतना प्रारब्ध के क्लोज हुआ। इसीलिए विधि शर्मा ज्वाइनिंग, इसीलिए जैसे कंसेप्ट ऑफ लाउड्स टाउजम, वो कहते हैं कि अवर लाइफ इज लाइक वाटर, वाटर फ्लोज। सो द बेस्ट वे टू लिव अवर लाइफ, गिल्ट फ्री लाइफ, या जो भी आपका बैगेज है सबको फ्री करके फ्रीडम के साथ जीना, फ्री विल के साथ जीना, इज टू क्रिएट एक्सेप्टेंस। जैसे आप हो उसे एक्सेप्ट कर लेना। यू डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग इन लाइफ, जो जैसा आ रहा है वैसे कर लिया। सो जब आप जितना एक्सेप्टेंस क्रिएट करोगे उतना फ्रीडम, आप फ्री विल आपका चलेगा और उतनी आपकी लाइफ फ्रीडम में जिएगी। इसलिए तब जैन मॉन्क और द बुद्धिस्ट मॉन्क वो स्ट्रगल नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ की ये है कि वी वांट टू चेंज अवर लाइफ, वी आर नेवर हैप्पी विद अवर लाइफ, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज सफर। हाउ मेनी ऑफ यू, अगर आपको सपोज करिए, इमेजिन करिए कि यू आर इन अ डेथ बेड, ऑन डेथ बेड, ओके, आप मरने वाले हो, और आपके पास यमराज आते हैं और कहते हैं कि आई वांट टू गिव यू दिस लाइफ, यू हैव टू ऑप्शन, वन टू गो टू हेल एंड सेकेंड टू लिव दिस लाइफ अगेन। 99% people will say I'm okay to go to hell, actually I don't want to live again. Okay, how many of you will actually say कि मैं ये जिंदगी दोबारा जीना चाहता हूँ? Yes, answer me. I- हाँ, मैं चाहती हूँ, बट यू नो व्हाट सर, मतलब मैं 10th एंड 12th दोबारा नहीं देना चाहती। 10th एंड 12th That's बहुत okay, that's रिस्की था। okay, that's okay. Yes, how many of you can actually say कि मैं ये लाइफ दोबारा जीना चाहता हूँ? हाँ, मैं तो चाहती हूँ, बस 10th और 12th छोड़ के। अगर Yes, जो इन्फॉर्मेशन आज मुझे पता है, अगर वही इन्फॉर्मेशन मुझे पहले मिल जाए तो फिर मैं तो जीत सकती हूँ। मगर मुझे पता है अगर नहीं ऐसे तुम्हारा वो रहता नहीं है तो मैं नहीं, याद नहीं लाइफ रहती वही उसकी। जीनी है, पता कुछ नहीं है, वही वही प्रोसेस होगा, यू वही। हैव टू गो थ्रू ऑल द कार्मिक साइकिल्स अगेन। हम्म। कुछ चेंज नहीं होगा, कॉपी पेस्ट लाइफ चलेगी आपकी। जी लेंगे, हम्म। यही लाइफ जी लेंगे, थोड़े और कर्म कट जाएंगे। एग्जैक्टली। वही तो काटना है। ओके, सो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं है और आपने लाइफ को जीना सीखा नहीं है। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग जब भी हम करते हैं क्लास में ही बड़ा हंसी आता है। कई लोग ज्वाइन करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं आता ये। कृष्णा, यस। तो आर्ट ऑफ लिविंग ही ये है, आपको जिंदगी ऐसे जीना है कि जिस दिन आप मर रहे हो ना, डेथ बेड पे हो और आपके सामने आपकी लाइफ फ्लैश करती है, आपको ऐसे लगना चाहिए कि यार क्या जिंदगी जी के गए, मजा आ गया, दोबारा जीने का मन कर। उस दिन आपने जिंदगी अच्छी जी है। वरना 90% लोग इन देर, यू नो, एडवांस एज, वो यही कहते हैं कि यार पता नहीं कब मरेंगे, दफा हो जाए, परेशान हो गए जिंदगी से। 90% पीपल टॉक लाइक दिस, इजंट इट? एब्सोल्युटली। यस और नो? दे आर Most सो true when I फेड was अप विद going through देयर a bad लाइफ, दे phase. एक्चुअली वांट टू डाई। आप अपनी जिंदगी को पसंद ही नहीं करते तो जिंदगी आपको क्या पसंद करेगी? यही आर्ट ऑफ लिविंग होता है कि जिंदगी ऐसे जीना कि जिस दिन आप मरोगे ना आपको लगना चाहिए यार क्या जी के गए यार, मजा आ गया, और दोबारा जीना पड़ेगा ना, दोबारा जिएंगे। आपको पता है हेल और हेवन कहाँ पे है? हेल और हेवन यही है जो हम जी रहे हैं, यही है। बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग। मरने के बाद तो भूल जाओ क्या होगा, पर अभी जो आपकी जिंदगी है इसको तो स्वर्ग और नरक बनाओ आप।
किसको भी नरक बनाओगे? उसके बाद तो कार्मिक बैगेज लेके जाना ही है आपने। आप जीते जी अपनी जिंदगी नरक बना लेते हो। दैट्स अ प्रॉब्लम। पावर ऑफ लेटिंग गो इज टाओइज्म। बेसिकली टाओइज्म क्या कहता है कि योर लाइफ इज लाइक वाटर। और वाटर का मत क्या साइन है? चलित साइन, बेसिकली चलते रहना, बहना। हमें लाइफ को रोकना नहीं है, हमें बहते जाना। और जो भी चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करते जाना। तो हमारी लाइफ हमेशा ही अच्छी रहती है, हम हमेशा खुश रहते हैं। जब हम अपनी लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तब हमारी लाइफ की प्रॉब्लम आती है। हमारे बुरा टाइम कभी नहीं आता। देर इज नो सच महादशा दशा जो बैड है आपके लिए। जब आप अपनी लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो डेस्टिनी क्या करती है? आपके सारे रास्ते बंद कर देती है और आपको फोर्स करती है इधर जाने के लिए। फिर आप 2 साल, 3 साल, 4 ईयर, 5 ईयर आप स्ट्रगल करते हो, और फिर एक दिन आप कहते हो यार ये रास्ता ही चलते हैं, यही दिख रहा है मेरे को। फिर आप उस रास्ते में चलने लगते हो। अगर आप पहले ही एक्सेप्ट कर लेते तो वो 4 ईयर्स का स्ट्रगल नहीं रहता आपकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ से 4 ईयर का बैगेज चला जाता है और आपकी लाइफ इजी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। यस आकाष्ठा। आकाष्ठा जी, मैंने पिछली दिवाली में देखा था आपको। हाँ जी। कुछ अभी तक एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ, ओके। आप जैसे कह रहे हो ना, हेवन और हेल, वो मोक्ष भी पॉसिबल है इसी लाइफ में। हमें उसके लिए हाँ, मरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मोक्ष बिल्कुल पॉसिबल है। यू मस्ट नो हाउ टू लिव लाइफ। आपको लाइफ को जीना आना चाहिए। आपको लाइफ को पसंद करना आना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू, अब मैं अभी क्लास में भी ये कहता हूँ, आप दूसरों को कहते हो आई लव यू। आप कितनी बार कहते हो आई लव मी? आप हाउ मेनी टाइम्स यू एक्चुअली लव योरसेल्फ? आई आप डू तो अपने नाउ। से नफरत करते हो, तभी तो दूसरों में खुशी ढूंढते हो। जो बंदा अपने में खुश है, जो बंदा अपने में संतुष्ट है, उसका ये सेट है जुपिटर। जो बंदा अपने में, जिस दिन आप अकेले रहना खुश हो जा सीख जाते हो ना, उस दिन आपका जुपिटर अच्छा हो जाता है। सेट जुपिटर। उस दिन आपका राहु केतु सेट हो जाता है। जो जितनी तकलीफ दे रहा है वो सब सही हो जाती है इसके आने से। आपको अकेले खुश रहना सीखना चाहिए, अपने में खुश रहना चाहिए। दैट इज पावर ऑफ लेटिंग गो। जिस दिन आप लाइफ से स्ट्रगल नहीं करोगे, उसके चेंजेस को एक्सेप्ट कर लोगे, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, दैट शुड बी योर एटीट्यूड। उस दिन आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा, बुरा वक्त नहीं आएगा। क्योंकि डेस्टिनी आपको जबरदस्ती एक रास्ते में नहीं ले जाएगी, आप ऑटोमेटिकली उस रास्ते को एक्सेप्ट कर लोगे। आपको लेफ्ट मुड़ना है, एज पर योर योर प्रारब्ध, योर डेस्टिनी टू मूव शिफ्ट लेफ्ट साइड। अब आप कह रहे हो मैं लेफ्ट जाऊंगा ही नहीं, मैं तो राइट जाऊंगा। तो आप राइट जाओगे, वहां का डोर बंद हो जाएगा। फिर इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इवेंचुअली एक ही डायरेक्शन का डोर खुलेगा। तो उस डोर को पहले ही एक्सेप्ट कर ले तो इजीली चले जाते हैं। आप दो दो साल तक घूमते रहते हो, फिर उसके बाद वहां जाते हो। बिकॉज आप एक्सेप्टेंस नहीं लाते अपने अंदर। पावर ऑफ लेटिंग गो। छोड़ दो, जो हो रहा है हो गया, छोड़ दो। इन चक्रों को छोड़ दो और इनके ऊपर आ जाओ। जब आप लेट गो कर दोगे तो आप कहां पर हो? यहाँ। दिस इज वेर यू आर। सो फार क्लियर? एनी क्वेश्चन? नहीं, प्रॉब्लम कब होती है? हेलो, हेलो। हाँ, प्रॉब्लम कब होती है? जब ढेर सारे प्रॉब्लम्स एट ए टाइम आ जाते हैं, तब सारी प्रॉब्लम्स होती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आते हैं, सारे कंस्ट्रेंट्स एक साथ आते हैं, तब सारी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज लेट गो, वो तो ठीक है। आपका एज कितना है? हाउ ओल्ड आर यू? 58। 58। यू आर 60 ईयर ओल्ड, राइट? हम्म। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, यू आर 60 ईयर ओल्ड, अभी आपको लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं आया। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है आपका? कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बिकॉज आपको प्रॉब्लम हैंडल करना नहीं आता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम लग रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि आप स्ट्रगल करना चाहते हो। मैं सबको यही कहता हूँ, यू वांट टू बी बिलीनियर बाय डूइंग हार्ड वर्क, दैट इज अ प्रॉब्लम। यू वांट टू हैंडल एवरीथिंग बाय हार्ड वर्क, दैट इज अ प्रॉब्लम। आपको सरेंडर करना नहीं आता आपके लाइफ में। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इफ यू आर लाइक दिस, इट इज डिजास्टर्स। बिकॉज वो बच्चों को भी यही सिखाते हैं, क्योंकि खुद भी वो चीज एजुकेशन नहीं लिया, खुद भी किसी से सीखे नहीं। आपकी लाइफ में
जो मोस्ट टू इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं, जो मोस्ट टू इंपॉर्टेंट, वो 5th हाउस है और 9th हाउस। ये आपकी पितरों की कृपा है, ब्लेसिंग्स फ्रॉम एंसेस्टर्स एंड लक करंट लाइफ का आपका। नाउ स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग हैं, लोग कहते हैं यहाँ से पितृ दोष है, यहाँ से पितृ कृपा है, मैं कहता हूँ यहाँ से। सो इट्स ओके, किसी को कहीं से लगता है, किसी को कहीं से लगता है, माई स्कूल ऑफ थॉट इज यहाँ से। दिस इज अ लक, ये आपका करंट लाइफ का लक है, एंड दिस इज योर ऑल पास्ट लाइफ लक, या फिर पास्ट लाइफ कार्मिक जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव ब्लेसिंग्स है, पितरों की कृपा, वो यहां से एज पर मी। ये दो हाउसेस जिसके स्ट्रांग होते हैं उसकी लाइफ हमेशा स्मूथ है। आप हार्ड वर्क से इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, इनमें बड़ा दुख हो रहा है हमें, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना ज्यादा उससे स्ट्रगल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उसे चेंज करना चाहते हो, आप मेहनत से करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग थ्रू हार्ड वर्क, दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, because you are brainwashed, and I feel really bad about it. If you are 60 and you are brainwashed till now, that is a big problem. हार्ड वर्क से आप लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ इन दोनों हाउसेस से चेंज कर सकते हो, आइदर थ्रू द लक जो आप लेकर आए हो, या फिर आपका पितरों का जो कृपा आप ले रहे हो, ब्लेसिंग्स ले रहे हो, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स, उससे चेंज कर सकते हो। आप हार्ड वर्क से नहीं कर पाओगे चेंज। तो आप क्या करते हो, 10 चैलेंजेस आ गए लाइफ में, अब मैं से हार्डवर्क से ठीक करूंगा, हार्डवर्क से वो ठीक होगा ही नहीं। हार्डवर्क से वो ठीक कब होगा, जब आपका ट्रांजिट आएगा, उसको जब ठीक होना है वो तभी होगा। आप एक्सेप्टेंस नहीं लाते हो, ये प्रॉब्लम है। एक्सेप्टेंस आएगा तो जब उसको उसको जब ठीक होना है उस प्रॉब्लम को, तभी होगा। आप हार्डवर्क करो या ना करो, उसे 2 साल बाद जॉब लगना है तो 2 साल बाद ही लगेगा, वॉट एवर हैपन्स। तो आप क्या कर रहे हो, उससे स्ट्रगल कर रहे हो। अब हार्ड वर्क से होता क्या आपकी लाइफ में, मैं बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि हाउ आवर कार्मिक साइकिल वर्क्स इन Yes. रियल लाइफ। सपोज करिए दिस इज द, इट इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यस विधि। हाँ सर, अगर सरेंडर फीलिंग चेंज होती रहे, आ रही है फिर कभी नहीं आ रही, तो उसको कैसे इंटरप्रेट करें या इसको पकड़ो, बनाएं? ये है ना कोई एक पागल आदमी, इसको पकड़ो, जी ये ठीक करेगा आपकी जी। पीठ पीठ के, ठीक है। देखो, अगर अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपके स्ट्रगल करने से प्रॉब्लम, हार्ड वर्क से प्रॉब्लम क्या होती है, और पावर ऑफ लेटिंग गो से क्या सॉल्यूशन मिलता है आपको, मैं ये समझा रहा हूँ। सपोज करिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, दीपाली जी ऑडिबल? यस सर। ओके, भावना जी यू आर देयर, सो फार क्लियर? नो, अच्छा ठीक है, ओके। सो सपोज करिए इन दिस करंट लाइफ यू आर सपोज टू गेट 1 CR ऑफ, I am yes, here. Sorry, I am here. everything is clear so far, you have any Yes. question? No, I understand. Thank you. Okay, do you have language issues like with the Hindi? Yes, I understand Hindi a little bit, but not too much. But I'm Okay, very okay, used if to you are not able to Google understand something, you can always raise your hand, it's okay. Okay, thank you. Thank you very Okay. much. So suppose as per your karmic baggage or karmic results, you are supposed to have 1 CR of funds, achieve 1 CR of funds in your life. आप इस जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए आए हो, ठीक है। अब आप हार्ड वर्क से जिंदगी कैसे खराब करते हो ये समझिए। आप कहते हो कि भैया हम तो तुर्रम खान है, हम तो इलॉन मस्क है, ठीक है जी, हम इस 1 करोड़ को बनाएंगे 10 करोड़। हमने हार्डवर्क से बना दिया 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ मिल गए हमारे, हमारे को कितने आना था, एज पर अवर प्रारब्ध वी शुड मेक 1 CR। हम हार्डवर्क से फ्री विल से क्या बना रहे हैं, 10 CR। अगर वो फ्री विल से तो ठीक है, अगर वो हार्डवर्क से अगेंस्ट द प्रारब्ध है, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमने 9 CR का एक बैगेज क्रिएट कर दिया। अब ये जो गॉड पार्टिकल है ना, ये जस्टिस कैसे करता है, ये आपको 9 CR का पेन और मिजरी देता है। कैसे देता है,
ऐसा ये कुछ ज्यादा ही खुश हो गया 10 CR से, इसको ना एक रिलेशन दे दो, स्पाउस दे दो इसको, जो ये 9 CR का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस बंदे को स्पाउस का प्रॉब्लम देगा, इसको बच्चों का प्रॉब्लम देगा, इसको हेल्थ का प्रॉब्लम देगा। इसीलिए जो सुपर रिच होते हैं ना, सुपर रिच, उनकी प्रॉब्लम मनी कभी नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम ये होती है जो पैसों करेक्ट से सॉल्व नहीं हो सकती। करेक्ट करेक्ट। दिस इज हाउ योर कार्मिक बैगेज वर्क्स। द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर लाइफ वट एवर इट इज, आई एम ओके विद इट, आपका कार्मिक बैगेज वहीं खत्म हो जाता है, प्रारब्ध खत्म, मोक्ष, लिबरेशन, निर्वाणा स्टेट, you are now moving towards nirvana. Now how many of you want that? That's a different discussion. Maybe you say no, we actually want to be in the materialistic world, which is absolutely fine, that's your free will. But I am trying to explain you कि हार्ड वर्क से प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में, कि you are supposed to have 1 CR, now through your hard work you just want to change everything in your life. That is human problem. हमारा human problem ये है, हम जिंदगी को पकड़ के रखते हैं, कहते हैं मेरे हिसाब से जी, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगी। जिंदगी ऐसे हिल रही है, वो परेशान हो रही है, वो कह रही है भाई मैं तेरे हिसाब से नहीं चलूंगी, मैं प्रारब्ध के हिसाब से चलूंगी। आई वॉन्ट टू मूव एज पर माई कार्मिक रिजल्ट। और तू चेंज करना चाहता है, तो आप क्या करते हो, उसको 10 CR कर देते हो बैंक अकाउंट को। आपने बैंक अकाउंट 10 CR करा, आपका ईगो ऊपर, भाई मैं तो ये डिजर्व करता हूँ, ये मेरी वजह से हुआ है। अब गॉड पार्टिकल क्या जस्टिस करता है कि वो कहता है कि भाई इसका जो बैगेज है ना 9 CR का बन गया है, अब 9 CR के बैगेज के लिए इसको लाओ डॉटर इन लो, ठीक है, एक डॉटर इन लॉ दो इसे बड़ी अच्छी सी। अब इसको दो लीगल बैटल, डिस्प्यूट। अब ये ना ये 9 CR में से 5 CR तो एलुमनी देने वाला है, ठीक है, और इसको 5 बचे हुए 4 CR का हेल्थ इश्यू दो अब इसको, और बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 CR दो, बच्चे भी वापस नहीं आएंगे अब कभी भी। नाउ दे आर बोर्न इन इंडिया, जाओ यूएस जाओ, वापस मत आना बच्चे को। अब वो 2 करोड़ का रो रहे हैं। दिस इज हाउ योर कार्मिक बैगेज वर्क्स। हार्ड वर्क का ये प्रॉब्लम होता है, अगर आप सिर्फ फ्री विल से मांगोगे तो आपको यहां से मिलेगा 9th हाउस और 5th हाउस। 9th हाउस और 5th हाउस क्या है आपके, 9th हाउस इज लक, दिस इज ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड पार्टिकल। 5th हाउस इज योर पितरों की कृपा, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स। ये कार्मिक बैगेज क्लियर नहीं कर रहा है, ये कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, ये ब्लेसिंग है, आपको ब्लेसिंग से मिल रहा है। इसलिए जितनी आपकी लाइफ ब्लेसिंग से चलती है उतनी स्मूथ चलेगी, उतनी अच्छी चलेगी। नो बारगेज विल बी क्रिएटेड, नो कार्मिक बारगेज विल बी बैगेज विल बी क्रिएटेड, एंड यू विल लिव अ वेरी वेरी पीसफुल लाइफ। उतना स्ट्रगल कम होगा आपकी लाइफ में। और ये अनएक्सपेक्टेड ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लम जो आ जाती है अचानक से ही, कैंसर, अभी तो लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, खबर आ गई भैया डिवोर्स हो रहा है बच्चे का, ठीक है, प्रॉपर्टी लिया, डिस्प्यूट। क्यों डिस्प्यूट आ रहा है, ये जो बैगेज आपने क्रिएट किया है ना, इसकी वजह से आ रहा है। आप सो फार क्लियर, एनी क्वेश्चन? यस, यस गायत्री जी, शुभ्रा, विधि, सौम्या, ऑल यस, गुड, थैंक यू सो मच। ओके, रेवती जी, तो सर कहाँ गए आप? ये सब हम खुद क्रिएट कर रहे हैं अपनी फ्री विल से, या हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये हमारा पास्ट लाइफ बैगेज था? ये सब हम क्रिएट कर रहे हैं हार्ड वर्क से, ओके। फ्री विल से नहीं। फ्री विल से तो हम गॉड पार्टिकल से ब्लेसिंग्स लेते हैं और एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स लेते हैं। राइट। अगर एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग है और आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा, आप बच जाओगे। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग इतनी बड़ी चीज है, यू विल बी सेव्ड। लोग हैं ऐसे जो कैंसर होने के बाद भी बच जाते हैं, वो हार्ड वर्क से नहीं बचते, राइट। वो ब्लेसिंग से बचते हैं हमेशा। इवेंचुअली जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हो ना, डॉक्टर को कहता है भैया भगवान को याद एक बार जरूर कर लेना। वो सेम ही डॉक्टर है और सेम ही ऑइंटमेंट देने वाला है, मेडिकेशन अलग नहीं दे रहा वो, बट कुछ है, कोई एक एक्स एलिमेंट है जो काम करता है। वो कहता है भैया एक बार मंदिर में हाथ जोड़ के आ जाओ, ठीक है ना, जिसको भी मानते हो, चर्च में जाते हो, मॉस्क जाते हो, जहां भी जाते हो, एक बार तो चले ही जाओ भाई। बाकी मेरे से जो हो सकता है मैं कोशिश कर लूंगा।
Are you getting my point? So this Yeah. is how it works. Ajay ji, I have one question. Yes, please go ahead. So I just want to understand like how to draw the line between like we need to do some minimum efforts for certain things, right? So hard work, like I know it will come if it's written in our destiny, but then हम भी कुछ try करना है ना, तो how do we differentiate that? Thank you. ये है क्वेश्चन आपका बेसिकली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Yeah. एफर्ट एंड हार्ड वर्क। लोग, जब Yeah. मैं कहता हूँ हार्ड वर्क से प्रॉब्लम हो रहा है, लोग कहते हैं मेहनत ही ना करें, कुछ करें ही ना। हाँ, तो उसका yeah. मतलब क्या है? दिस इज व्हाट यू वांट टू नो, राइट? Yes, yes. सो आप जब भी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल, आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स, Hmm. ओके, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, लेट्स गो बैक टू योर स्टूडेंट लाइफ, ओके। Okay. और वो क्लियर नहीं हो रहा है कोई एग्जाम, यू वांट टू परस्यू एमबीए और आपका कैट हो ही नहीं रहा है, 1 साल 2 साल, अब आप लगे हुए हो, उस हार्डवर्क की कोई कीमत नहीं है, लाइफ कह रही है ये आपके लिए नहीं बना है। Yeah. Okay. यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, लोग ऐसे हैं बेवकूफ जो 10-10 साल से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉस में आते हैं, कहते हैं कभी कमाते ही नहीं है, आता है चले जाता है, आता है चले जाता, क्यों है? क्योंकि स्टॉक से आपकी अर्निंग नहीं लिखी हुई है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, वो आता है Yeah. फिर चला जाता है। आपका हार्डवर्क क्या है? जीरो। Okay. एफर्ट्स क्या है? द मिनिमल बेसिक ड्यूटी, बेसिक कर्मा विच इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ टास्क, और उससे आपको रिजल्ट मिल जाता है। जिस दिन Okay. आपका लक चलता है ना, उस दिन आप इतना सा करते हो और इतना रिजल्ट मिलता है, आप इतना करते हो, आप इतना मिलता है, वो ब्लेसिंग है। आप सबके अपने लाइफ में एक चीज नोट करिएगा, अपने लाइफ में नोट करिएगा, जब भी जुपिटर का ट्रांजिट 9th हाउस से होगा, अब आप उस पीरियड में अपनी लाइफ देखना कैसी है, आपको इतनी ब्लेसिंग मिलेंगी जुपिटर की कि आपको समझ में आएगा कि एफर्ट और हार्डवर्क में फर्क। आप इतना सा करोगे ना, इतना काम होगा। आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट 10 ईयर से है, अभी जैसे लिब्रा एसेंडेंट का और 9th हाउस में है, इवन आई एम लिब्रा, तो इतना Me too. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो 10 साल से हो, फिर 1 महीने में क्लियर, 1 मंथ में क्लियर। वो 1 मंथ में कैसे क्लियर हो रही है? वो हार्डवर्क से थोड़ी हो रही है, वो 10 साल से आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, वो किससे हो रही है? आपकी ब्लेसिंग से हो रही है। Okay. सो एफर्ट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ, यस कृष्णा, दीपाली, effort is basically the minimum effort amount of work you are doing, the basic duty to execute any task, Okay. and then you have to accept the result. Hard work कब होता है? This is When it's acceptance. Hmm. जब आप एफर्ट्स कब होते हैं? जब आप एक्सेप्टेंस लाते हो कि जो भी है ठीक है। आपकी Hmm. लाइफ में आप देखो, आपने कुछ काम किया और आपने उसकी एक्सेप्टेंस रखी, तो आपको उसका मेहनत फील भी नहीं होगा। आप कहोगे भी Yes. नहीं कि मैं 1-1 महीने तक काम किया, 4 नाइट्स 5 नाइट्स हम रात को जागे रहे, मेहनत करा, फील ही नहीं होगा आपको, बिकॉज आप में एक्सेप्टेंस है, रिजल्ट आ जाए तो ठीक है, ना कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई एम ओके विद इट। Okay. आपको हार्डवर्क कब फील होता है? जब आप में एक्सेप्टेंस नहीं है, आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, वो चीज नहीं हो रही, पर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये नहीं हो रही है। Okay. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आकाष्ठा जी? Yes. Yes. Yes, Ajay ji. So, Thank you. Thank you. so hard work is when you are against the acceptance. You don't want to accept the But results. That is okay. hard work. You Keep are trying. trying to change your life. You want to flow against the water, against the Okay. current. You want to change your प्रारब्ध. That is hard work. Life कहती है कि मैं नहीं बदलूंगी। Hmm. अब क्या होगा? आपका जॉब लगना है, सपोज करिए आपका जॉब लगना है एक पर्टिकुलर डोमेन में, Hmm. ठीक है। अब आप 10 डोमेन्स को अप्लाई करोगे, वो 1 2 3 4 सारे दरवाजे बंद करके, फिर वो 6 मंथ के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप आओगे कि चलो ये वाला जॉब भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब तो लग तो रही नहीं है। अब वो Yeah. एक्सेप्टेंस पहले ही ले आते तो वो जॉब 6 मंथ पहले ही लग जाती है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Okay. Yeah. Thanक यू सो मच। ओके, जस्ट हेलो, यस, हाँ जस्ट एक बार मुझे बताइए ये जो यस मानिक जी, कहाँ गए? अरे आप कुछ
कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया हम करते रहते, होती रहती चीजें, पता नहीं कौन सी ऐसी पावर है जो गाइड कर रही है हमें। सो या आई हियर यू। ऐसे बहुत लोग हाँ, देखे हैं वो मैंने, प्रॉब्लम है ना। उनको गाइडेंस होती है। तो अब जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, अच्छा पता नहीं, आई डोंट नो माइनिक जी कहाँ गए, ही वाज आस्किंग समथिंग। एनीवेज, वो क्या होता है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। अब देखिए क्या होता है, गायत्री जी ध्यान से सुनिए, अब क्या होता है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो आप क्या करते हो, किसी के पास जाते हो और काम हो जाता है आपका। आप कहते हो यार ये तो कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। वो काम नहीं हो रहा, वो बंदा क्या कर रहा है आपको, आपका नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है आपको, गुरु, टीचर। इसीलिए मैं कहता हूँ गुरु बनाओ जिंदगी में और उस पर छोड़ना सीखो। आपका नाइन्थ हाउस स्ट्रांग हो जाएगा, लक का हाउस, काम अपने आप बनेंगे। आप हैरान हो जाओगे काम कैसे बनते हैं। आई कांट गिव यू एग्जाम्पल बिकॉज इट डजेंट लुक गुड, बट आपके ही ग्रुप में कुछ लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे। वो ऐसे काम होते हैं, वो खुद हैरान हो जाएंगे कि ये 10 साल से नहीं हो रहा है काम, पता नहीं कैसे हो गया। वो लक एक्टिवेशन से होता है। हाँ जी मानिक जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, आप जो वर्ड यूज करते हैं सरेंडर, फाइनली आप उससे क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है सरेंडर आपका करें? वॉइस कम आ रहा है मानिक जी, आई डोंट नो मेरे साइड पे आपकी साइड पे, आई कांट हियर। यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है। सरेंडर ये जो वर्ड यूज करते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सरेंडर मतलब, उसे एक्सपेक्टेशंस क्या है? सरेंडर मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? एक सेकंड, हाँ अभी सरेंडर, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सरेंडर मीन्स, सरेंडर मीन्स व्हाट? फाइनली सरेंडर इज एक्सेप्टेंस। अच्छा, एक्सेप्टेंस। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपने सरेंडर कर दिया, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। अच्छा, यस विधि। गॉट इट, गॉट इट। सर एटलीस्ट मे बी हम लोग कंडीशनड हैं, बट अगर हम किसी चीज में ना टाइम इन्वेस्ट कर दें या एफर्ट इन्वेस्ट कर दें तो एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि अब हमें कुछ मिलना चाहिए इसका रिटर्न। जो हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट से डिटैचमेंट। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि क्योंकि हम सब जो है ना, हम सबके घर के बाहर एक डोंकी है। अब वो डोंकी आप सबको देखता रहता है 24 घंटे, और वो कहता है भैया डोंकी तो मैं हूँ, हरकतें तुम गधों जैसी कर। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, एक्सपेक्टेशन रखोगे तो जो चाहोगे वो कभी नहीं मिलेगा आपको। मैंने आपको क्लियर कह दिया है। आपने जिस दिन जो चाह लिया ना, प्री लिव कर लिया, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। मार्क माय वर्ड्स, आप मेरा नाम बदल देना, मिल जाए। ठीक पर है उस जी। पे वर्क आप कैसे विधि जी, करें? विधि जी, आप किसी चीज के पीछे 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से भागोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप हार्ड वर्क करे जा रहे हो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो रास्ते बंद करना चाहता है आपके, हाँ लेकिन जी। आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। विधि जी। आप समझ गए मेरी बात। और अगर वो हाँ एक्सेप्टेंस, वो फ्लो ऑफ वाटर आप पहले ही ले आओगे तो अपने 10 साल बचा लोगे बेटा। अभी समझ में आ रहा है कुछ आपको। हाँ जी। विधि जी। इसीलिए अब ये समझाने के लिए आपको क्या चाहिए, इस हाँ हाउस को जी। एक्टिवेट करो, इसको लाओ, ये एक ऐसा, इस पागल आदमी को पकड़ो, इसको, जो कैसा भी है पर इसको पकड़ो, तभी जिंदगी चलेगा आपको। हाँ जी। जी यस, सर। एनी मोर क्वेश्चन, शुड आई मूव अहेड, दूसरे टॉपिक पे नहीं, चले। मैं बोल रही थी कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन। चलिए। सो पावर ऑफ लेटिंग गो, आई थिंक वी आर डन। ये थोड़ा ज्यादा कर लिया, आई वांटेड टू फिनिश इन हाफ एन आवर एक्चुअली, बट चलिए कोई बात नहीं। सो एनी डाउट अबाउट पावर ऑफ लेटिंग गो, एनी क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं आया आपको। Beautiful topic as always. Thank you so much for giving it your time. ओके। यस गायत्री जी, वांट टू से समथिंग? नो। No. अजय जी, हाँ जी अंकुर जी। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ। ओके। And I don't expect people to answer publicly, that's all right. They can answer within their heart. How many of you believe that they are genuinely trying to let go, they're genuinely trying to surrender, but when they go to buy vegetables, they end up doing negotiation of 5 rupees, 10 rupees with the sabzi wala? I don't do that now. Good question. You can I answer try and within listen yourself. back more. Now, sabzi wala is just one example, you know. वो कहीं भी हो सकता है, साड़ी की दुकान में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. This absolute, this whole desperation to hold money of someone else. और मैंने 4 पैसे बचा लिए, दूसरे के हक का मार के जो खुशी मिलती है, एक तरफ हम वो करते हैं और दूसरी तरफ हम करते हैं कि
लेट गो कर रहे हैं, हमें तो मोक्ष मिलने वाला है, हमें ये मिलने वाला है, हमें वो मिलने अब वो वाला है। कुछ नहीं होगा, वो आपने कार्बन बैगेज क्लियर अपना और क्रिएट कर लिया है। बिल्कुल उल्टा ये बैगेज जो बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो आप होटल्स में जाके ब्रेकफास्ट करते हो ना, आई एम रियली सॉरी टू से, इट इज वेरी लाफेबल थिंग एक्चुअली। ये जो आप बफेट ब्रेकफास्ट में जाते हो और आप ये इतना बड़ा किलीमंजारो लेके जाते हो ना, ये सब मत करा करिए। वट एवर फ्री, किसी ने फ्री में कुछ दे रहा है आप ले रहे हो, मत करिए, फ्री में कुछ मत लो। नहीं लेना। एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वी आर हेयर टू एक्सचेंज एनर्जी। आप किसी की एनर्जी फ्री में ले रहे हो तो आप अपना कुछ दे रहे हो उसको, वो आपको दिख नहीं रहा अभी, उसका कार्मिक बैगेज कार्मिक ले रहे बैगेज हो आप। बढ़ते जाएगा। बिल्कुल से कार्मिक बैगेज ठीक है बढ़ते जी, ही जो जाएगा फ्री बस। फ्री में, अनलेस अनटिल आपसे वो मदद नहीं मांग रहा, मदद नहीं करनी किसी की भी। ये जा जाके पैसे दे के आना किसी को, कुछ नहीं होता इससे। कार्मिक बैगेज क्लिप बनता है आपको और ज्यादा, अनलेस अनटिल वो डिमांड करे। सपोज करिए देर इज एन एल्डर लेडी, मैन वट एवर, कोई भी जेंडर हो सकता है, वो आपके नेबर में रहते हैं। अब आप क्या करते हो, उनको कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा, आप क्या करते हो, जाके उनके लिए आप बेटा फूड लेके जाएंगे, खाना लेके जाएंगे, हम तो इनकी मदद करेंगे। आप गलत कर रहे हो। आपको लग रहा है आप तो बड़े शरीफ हो, आप शरीफ नहीं हो। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें आप कोई, ऐसा नहीं है कि आपका बड़ा निश्चल मन है कि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आप कह रहे हो ये अच्छा काम करेंगे ना, इससे हमें ये मिलेगा, ये गुडीज मिलेगी हमें, गॉड पार्टिकल कुछ देगा। सबसे पहले तो वही गलत हो गया आप। सेकेंडली, वो जो एल्डरली लेडी है जो अकेले घर में है, दैट इज हर कार्मिक बैगेज, उनको क्लियर करना है। शी इज सपोज टू गो थ्रू दैट पेन एंड मिजरी। इसलिए मैं कहता हूँ वेटेनरी हॉस्पिटल जब जाते हैं आपके डॉग्स, उनको वो क्या करते हैं, इंजेक्शन देके मार देते हैं। वो 15 डेज तक सफर करता, वो ज्यादा बेटर था उसके लिए। उसका कार्मिक बैगेज क्लियर हो जाता, उसकी लाइफ ही खत्म हो जाती वहां। अब आपने उसे 15 डेज की सफरिंग बचा दी, उसे सीधा मार दिया। वो नेक्स्ट लाइफ फिर से आने वाला है। वो 15 डेज उसको जीने ही जीने हैं, चाहे कुछ कर लो। वो अकाउंट आपने क्लियर नहीं करने दिया। सो वी आर नो वन, हम कोई नहीं है किसी के लिए कुछ करने वाले। दिस इज I have a प्योर कृष्णा question. कॉन्शियसनेस। आई हैव अ यस। क्वेश्चन। सो इनका ये भी कहते हैं कि ऐसा प्रारब्ध है कि दूसरा बंदा आकर हेल्प कर जाता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर एक्सीडेंट में हो जाता है, एक्सीडेंट हो हाँ जाता हाँ, है, तो तो आप क्या कौन वो हो दूसरा करने बंदा वाले, उसकी वो हेल्प? अपने आप करेगा ना, अपने आप आएगा उसके लिए। अगर आप होंगे तो वो अपने आप करने लगोगे। उस जगह पे फिर आप अकेले ही खड़े होंगे करने वाले। ओके, ठीक है जी, आप 50 की वीडियो में जाके सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है आपको। अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए। सो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, विष्णु सहस्रानम। तो आप क्या करते हैं, ये कैसे काम करता है, करता भी कि नहीं करता। और काफी लोग डिसाइड करते हैं, कहते हैं कि जी 9 प्लैनेट्स जो है हमारे स्पेसिफाई हो जाते हैं, बीपीएच पराशर में तो लिखा है, और के एन राव साहब ने भी कहा है ये। माई पॉइंट इज कि विष्णु सहस्रानम जो है वो काम करता है, नॉट 100%। इट वर्क समटाइम्स, समटाइम्स इट नेवर वर्क। बट अगर आप उसका साइन समझ लोगे तो वो विष्णु सहस्त्रनाम है। चाहे वो अजय सहस्त्रनाम है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो स्मिता जी का है, चाहे वो अंकुर जी का, वो तब भी काम करेगा। तो आपको उसका साइंस समझना है कि वो काम कैसे करता है। दिस इज योर ब्रेन, देर आर 3 पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन: unconscious, subconscious, and conscious. I hope everyone is aware of the 3 segments I have covered extensively in previous sessions. If you are the new one, please raise your hand so I can brief you quickly in 2 minutes. If you are already aware, it's okay. Should I move? Yes, no. Yes, sir. Yes, Small sir. briefing, sir, small briefing. Small briefing. Okay, no issue. So, subconscious mind, when you are born with only this part of your brain, unconscious mind. Unconscious mind is that part of your brain which works automatically. जब एक बच्चा पैदा होता है वो अपने आप सोता है, अपने आप रोता है, अपने आप खाता है। एवरीथिंग इज ऑन इट्स ओन। बच्चे को कोई नहीं बताता। बच्चा जब पैदा होता है अपने आप रोना शुरू कर देता है, ऐसा थोड़ी कोई उसको ट्रेन करता है। सो जो आपका पार्ट बॉडी फंक्शनिंग जो ऑटोमेटिकली हो रही है विदाउट योर कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, दैट इज अनकॉन्शियस। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन भी इसमें आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्निंग कैंडल है, आप उसे हाथ लगाते हो तो एकदम से पीछे कर लेते हो, दिस इज अनकॉन्शियस। यू आर नॉट डिसाइडिंग, दिस इज ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस। ओके गायत्री जी। Okay. Subconscious is the part of the brain which you train slowly, step by step, step by step. And eventually it becomes your overall attitude and mindset, जो 25 years तक फिक्स है, उसके बाद कभी चेंज नहीं होता।
इसलिए 25 ईयर्स के बाद इंसान कभी नहीं बदलता, इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है बदल जाए, वो नहीं बदलेगा। इसलिए हस्बैंड वाइफ की ज्यादातर प्रॉब्लम यही है, उनकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। ये आज के बाद ना आप अल्कोहल को हाथ नहीं लगाएंगे, ये बदल गए हैं। वो भैया वो नहीं बदला है, वो 1 साल बाद फिर से वही हो जाएगा। ठीक है, आप कभी नहीं बदलते। 25 ईयर्स के बाद आप कभी नहीं बदलते। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, मेरे मेरे वर्ड्स याद कर लीजिए आप। इसीलिए यंग एज में उनके एटीट्यूड को ट्रेन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए जो लोग यंग एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं वो लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं, बिकॉज यंग एज में उनका एटीट्यूड ट्यून हो गया है। बाद में क्या होता है, जैसे जैसे दे विल गो थ्रू द हार्डशिप, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे ही अच्छे दिन आएंगे फिर से एरोगेंट हो जाएंगे। आप लोगों को देखते होंगे, आपको लगता भी होगा यार, जब इनकी प्रॉब्लम आती है ना मेरे पास आ जाते हैं, जैसी ठीक हो जाती है पता नहीं एरोगेंस हो जाता है, एरोगेंस दिखाते हैं, हमें बहुत एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसे इन जनरल? यस और नो? Yes. ओके, एक ही यस आ रहा है। अभी अभी अनम्यूट तो करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आई कांट Yes, सी you're द right. चैट। Yes, ओके, yes, सो absolutely. कॉन्शियस ब्रेन इज द वन विच डिसाइड्स, जो अभी कॉन्शियसली देख रहा है, रोड क्रॉस करते हुए एक्टिव है, ये सब कॉन्शियस ब्रेन है। ओके, आप जो ये विष्णु सहस्त्रनाम बोल रहे हैं या जो भी रेसिटेशंस आपकी हैं, आप ध्यान से सुनिए काम कैसे करती हैं साइंटिफिकली। कुसुमा जी, यू जस्ट ज्वाइन? नो? Yes, yes, I'm here. I'm ओके, here. you actually joined at right time. I am explaining the important part. Okay, This I okay, have okay. explained in the course also, but I am explaining here. It's a short one Sure. actually. जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं वो सारा का सारा इस कॉन्शियस ब्रेन को शांत करने के लिए है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो क्या होता है, आप अपने माइंड की फ्रीक्वेंसीज को शांत कर लेते हो, सोचना बंद कर देते हो, ध्यान करते हो, साधना करते हो। यू आर बेसिकली ट्राइंग टू काम योर माइंड। जब आप इसको काम कर लेते हो तो इसका एक अल्फा स्टेट है जिसको हम मेडिटेशन के स्टेट से बोलते हैं। जो मेडिटेशन का एक्चुअल स्टेट है, जो आप बिल्कुल काम हो जाओगे, वो अल्फा स्टेट, कॉन्शियस स्टेट। इसका फ्रीक्वेंसी 1 to 4 हर्ट्ज। ओके, सॉरी, 4 to 8 हर्ट्ज। ओके, so your conscious brain frequency is 4 to 8 hertz. Hertz is the unit of frequency. Okay, clear? और सबकॉन्शियस जो है, दिस इज 1 to 4, दिस इज 4 to 8, दिस इज 8 to 12। सॉरी कंफ्यूजन। 1 to 4, 4 to 8, 8 to 12। ओके, अब आप कॉन्शियस ब्रेन को मेडिटेटिव स्टेट से ला रहे हो और धीरे धीरे उसे अनकॉन्शियस में ला रहे हो, यानी कि अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर ले रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा आप। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, जो आपका जो अर्थ का रोटेशन है ना, अर्थ का रोटेशन, जो अर्थ एक सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो अर्थ का भी फ्रीक्वेंसी है। दिस इज साइंटिफिक। अर्थ फ्रीक्वेंसी इज 8.3 हर्ट्ज एंड योर कॉन्शियस ब्रेन फ्रीक्वेंसी इज लाइज बिटवीन सेम। यानी कि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो तब आपके ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कॉस्मोस की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो जाती है। इस स्टेट को आप जो चाहोगे वो मिलता है, बिकॉज आप कॉस्मोस के साथ अलाइन हो इस वक्त। आपका जो इनर कॉस्मोस है, ये जो इनर कॉस्मोस है और जो आपके एक्सटर्नल कॉस्मोस है इन द स्पेस, वो अलाइन हो गया है, उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही है। इस स्टेट में आप जो चाहते हो वो कॉस्मोस आपको देता है। कॉस्मोस इज गॉड, यूनिवर्स, भगवान, 5 एलिमेंट यूनिवर्स। इसीलिए आप उसको विष्णु सहस्त्रनाम कहो चाहे कुछ भी कहो, वो काम करेगा, क्योंकि वो साइंटिफिकली आप अब मैं उसको मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। आप जो चाहते हो उसको मांग रहे हो और वो मिल रहा है, बट वो काम नहीं करेगा अगर आपका बिलीव ही नहीं है। क्योंकि आपका बिलीव नहीं है, आपके अपने आप को काम नहीं कर पा रहे हो, आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा, अलाइन नहीं कर रहा कॉस्मोस के साथ। इसलिए कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कोई भी सॉल्यूशन करो, बिलीव इज द फर्स्ट स्टेप। अगर बिलीव ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, कुछ नहीं हो सकता फिर। अगर बिलीव है और आपने अपने को काम कर लिया, कॉस्मोस के साथ अलाइन कर लिया,
तो जो चाहोगे वो मिलता है फिर आप। तो वो विष्णु सहस्त्रनाम के रिसाइटेशन से हो, चाहे आपके किसी मंत्र से हो, किसी जाप से हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये जो मंत्र जाप वगैरह ये सब यही है और कुछ नहीं है। ओके, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन विधि? व्हेन जो आपने सोचा और आपका हर्ट ब्रेन हर्ट कोहेरेंस हुआ, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? Yes. ओके, अब आपका जो हर्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट बीट? 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स हार्ट बीट होना चाहिए आपका, राइट? Yeah. दैट मीन्स हार्ट का जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट? 72 डिवाइडेड बाय 60, 1.2 हर्ट्स। व्हाट इज 1.2 हर्ट्स? अनकॉन्शियस Got it. ब्रेन, अनकॉन्शियस ब्रेन, ब्लेसिंग्स, कृपा, केतु। तो जब आप अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को कोहरेंस में लाओगे, तो आपको कृपा मिलती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप मैनिफेस्ट करते हो। इसीलिए आप स्लो ब्रीदिंग करते हो। स्लो ब्रीदिंग करोगे, आपका ब्रेन स्लो होगा। जितना स्लो होगा ब्रेन, आपका हार्ट ब्रेन कोहेरेंस हो जाएगा। दिस इज साइंटिफिक। फैसिनेटिंग है कि नहीं है? यस और नो? Very. 100%. समझ में आया है कुछ? यस दीपाली जी, Yes. आकाष्ठा जी, एनी डाउट? No. So यस some आई of the कैन। frequencies that you sent to here, they were higher than this frequency, or it is to नो, take your हायर तो mind चलती and heart जाएगा, towards ये तो common हायर people. चलता जाएगा जितना। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनका लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ज्यादा टेंशन, ये जो कह रहे हैं ना अभी, किसी ने कहा हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क से क्या कर रहे हो आप? टेंशन ले रहे हो, Hmm. आपके दिमाग को शांत नहीं कर रहे हो। कॉस्मोस Right. कह रहा है भाई एक्सेप्ट कर लो, शांत हो जाओ, मेरे पे छोड़ दो तुम। आपको छोड़ना ही तो नहीं आ रहा है, आपको पकड़ के रखना है और हार्ड वर्क करना है। आपको दिमाग को 24 घंटे दड़ाना है, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, मेरा ईएमआई कैसे आएगा, कैसे नया प्रॉपर्टी। आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, अपने कॉन्शियस को 8 और 12 हर्ट्ज से भी ज्यादा 30 हर्ट्ज तक ले जाते हो आप इसे, जिसको हम गामा कहते हैं, गामा स्टेट। अल्फा के बाद बीटा एंड देन गामा। अब इतना दिमाग लगा रहे हो और कॉस्मोस और हर्ट फ्रीक्वेंसी अलाइंड ही नहीं है अब आपके साथ। अब कॉस्मोस कह रहा है भाई शांत हो जाओ, मेरे पे छोड़ दो, एक्सेप्टेंस लाओ, आई विल हैंडल एवरीथिंग। बट आप कहते हो नहीं, हम तो सेल्फ इम्प्रेस्ड हैं, ईगो इतनी सारी है हमारी और हम सब कुछ करेंगे। एक आया था अकबर और एक मैं, अब मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। समझ में आया आपको? Yes. कुसुमा जी, अंडरस्टूड? आपको तो पता ही है वैसे। Connected. Well यस, connected. सो दिस विष्णु सहस्त्रनाम वर्क्स लाइक दिस। दिस इज द साइंटिफिक लॉ। तो कभी काम करता है, कभी नहीं कर। जब आपका बिलीव ही नहीं है तो काम करेगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लो और बिलीव है, और आप कुछ नहीं भी बोलोगे और टेम्पल में जाके बैठ जाओगे, गॉड पार्टिकल अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, योर इंटेंट। कई लोग हैं जो पिलग्रिमेज जाते हैं, मुंह से बोल नहीं सकते। आपको क्या लगता है उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती? वो सिर्फ जाके रो रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा पूरी होती है। उनके रिसाइटेशन से, चैंटिंग से नहीं हो रही, उनके इंटेंट से हो रही है। बिकॉज देयर इंटेंट इज सो प्योर एंड दे एक्चुअली सरेंडर। उनका ब्रेन हर्ट कोहेरेंस और कॉस्मिक बॉडी और कॉस्मोस कोहेरेंस ये वर्क कर रहे हैं। तो गॉड पार्टिकल सब कुछ दे रहे हैं उनको फिर। सो फार क्लियर? शुड आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? अंकुर जी, ऑल ओके? बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत इसमें बढ़िया। एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड, वो अंकुर जी स्पेशलिस्ट इन दैट एक्चुअली, आई एम नॉट अरे दैट गुड नहीं, वेरी। इज द ईस्ट, दैट इज द रोल ऑफ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके चार्ट में प्योरली फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग कि विष्णु सहस्त्रनाम और एनी अदर चालीसा, मंत्र, चैंटिंग एक्सेट्रा, जपा, आपको ईस्ट को पकड़ना है हर हाल में। आपके ईस्ट देवता कौन है? अब वो आर्ट है, वो थोड़ा सा बंदे, वो आपके चार्ट रीडिंग में आता है वो, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। इट इज नॉट सो सिंपल कि इसका लॉर्ड है उसका लॉर्ड है। वो सिंपल लोग बोल देते हैं कि इसका लॉर्ड है उसका लॉर्ड है, वो कर लो, ऐसा नहीं होता। वो थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए।
पराशर में तो और टाइम लगता है, बीएनएन स्टिल जो अंकुर जी का है, वो तो बहुत ही बेस्ट है प्रिडिक्शन बट वाइज। कभी कभी किसी स्पेसिफिक गॉड से अट्रैक्शन भी हाँ होता तो किसी, अगर आपने ईस्ट को समझ लिया, चार्ट रीडिंग आप जब भी करते हैं उनसे जरूर पूछना है, आपने जिससे भी कराते हैं उनसे पूछना है, बिकॉज ईस्ट वो हैं जो ब्लेसिंग देंगे। जब ब्लेसिंग देंगे तो क्या होगा, एक बार नाम लिया इतना और मिला इतना, दैट इज द पावर ऑफ ईस्ट। आप क्या करते हो, किसी डीटी के पीछे पड़े जा रहे हो, पड़े जा रहे हो, फैशन, गणेशा, चलो भैया अभी तो पंडाल गणेशा का लगाओ, जाके हाथ जोड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपका ईस्ट कौन है, यू मस्ट अंडरस्टैंड। अब आपके विष्णु ईस्ट है, लॉर्ड विष्णु इज योर ईस्ट, पढ़िए विष्णु सहस्त्रनाम, काम करता है, 100% काम करता है। अब आपके शिव है, तो आप उनको पूज ही नहीं रहे हो, आपको ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगा? वो ब्लेसिंग का एरिया ही आपने खत्म कर दिया अपना। इसीलिए यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कौन से ईस्ट आपके हैं, और उनका रिसाइटेशन जब आप करते हो वो ज्यादा चांसेस है आपके लिए काम करने के लिए। और इतना रिसाइटेशन करोगे, इतना चैंटिंग करोगे, इतना मिलेगा, बिकॉज वो आपके लिए बने हैं। इसलिए कुल देवता ईस्ट, द कंसेप्ट इज, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। और वो जो एंसेस्टर्स बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं, जिनको हम कहते हैं हम तो मॉडर्न है, इनको सुनना नहीं चाहिए, वो समझदार हैं इस मामले में, उनको पता है कि ईस्ट कौन है, कुल देवता कौन है, इसीलिए वो पूछते हैं। So far clear? Any question? Yes. आकाष्ठा जी, कौन कौन आए हो आज? प्रिया हरिदास जी, आप कहाँ पे हो? आप गायब हो रहे हो, I'm मुझे here, आप दिख ही sir. नहीं रहे हो। Okay. आप कहाँ गायब हो गए? आई कांट सी यू। I'm here, sir. I don't अच्छा know. चलो कोई बात नहीं, आप इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। Sorry. एनीवेज, सो लेट्स मूव टू द है। नेक्स्ट। प्रिया जी की फ्रीक्वेंसी फील होती है बहुत अच्छी। किसकी? प्रिया जी की। प्रिया जी की। प्रिया जी मैं बता रहा हूँ आपको, प्रिया जी का तो एक क्या कहते हैं, अलग ही हिसाब है, बिकॉज ये चक्रों में काम करती है। अगर आप चक्र से काम करेंगे, आपका लाइफ सॉफ्ट, बिकॉज आपका फ्रीक्वेंसी अलाइंड हो गया है, आपका चार्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। जिंदगी में आपको सिर्फ चार्ट ठीक करना होता है, D1 D9 जो भी ज्यादा एक प्रोमिनेंट है बेसिकली, बट चलो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं D1 कह देता हूँ। आपको इसको ठीक करना होता है बस, ब्लेसिंग से, बाकी काम अपने आप होते हैं, और कुछ नहीं करना आपको। ये 24 घंटे 5 o'clock उठ के पूजा करने से कुछ नहीं होता आपके। आपके बुरे दिन में आप सबसे ज्यादा करते हो, आप लिख कर ले लो मेरे से। और कुछ काम नहीं करता, वो करेगा ही नहीं काम, क्योंकि वो प्रारब्ध में लिखा हुआ है, आपके होना ही होना है। गॉड पार्टिकल कहता है आई एम नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन कार्मिक बैगेज, वो तुम्हारा अपना क्रिएट किया हुआ है, आप खुद सॉल्व करो इसको। वो 10 साल 20 साल करो उसको सॉल्व, मैं उसमें इंटरफेयर करूंगा ही नहीं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक सो वी कैन क्विकली सम अप द सेशन। इज मर्क्यूरी। अभी तो सब खुश हो जाएंगे इस टॉपिक पे। ये वाला टॉपिक हर कोई सुनना चाहता है, कोई कोई ज्ञान नहीं लेना चाहता है। गुरु तो बनाने ही नहीं, ढेले की इज्जत नहीं गुरु को है कि बना ले गुरु है। देखिए मर्क्यूरी टॉपिक समझिए, मर्क्यूरी प्लैनेट। मर्क्यूरी एक इतना सॉफ्ट प्लैनेट है, एक छोटा बच्चा जैसे होता है ना, वो मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी बेसिकली वो बच्चा है या वो बच्ची है जिसकी प्यूबर्टी अटेन नहीं हुई है, एंड द रिलेशन विद whom यू कैन नॉट हैव अ फिजिकल टर्म्स। सो चाची ताई, मतलब पेटर्नल साइड से जो हो गई, मदर आंट बुआ मौसी, ये सब मरकरी में आते हैं। मरकरी का जुपिटर तारा मून स्टोरी, मैथोलॉजिकल स्टोरी, आई होप यू ऑल आर अवेयर, राइट? यस और नो? आई विल, अगर नहीं है तो दिस यू कैन गूगल, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ओके यस। सो मर्क्यूरी बेसिकली तो देखिए, जुपिटर इज द फादर, ठीक है, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, नॉट डायरेक्टली बट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मर्क्यूरी क्योंकि प्यूबर्टी से पहले एक छोटा बच्चा है, बच्ची बच्चा, तो उसको जेंडर से एसोसिएट नहीं किया है। इसीलिए कुसुमा जी, वी ऑल्सो एसोसिएट मर्क्यूरी विद इनच, विच यू मेंशन इन द कोर्स हाउस, बिकॉज Okay. वो एलिमेंट है जिसका कोई सेक्स ही नहीं है, प्यूबर्टी Oh. नहीं है ना, तो वो एक ही बात है, छोटे बच्चा है वो, बच्ची बच्चा। अब वो इतना बच्चा है कि उसको हमेशा कोई चाहिए। सो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी अगर आप देखेंगे, सपोज दिस इज सन,
दिस इज मर्क्यूरी एंड दिस इज अर्थ. बीच में वीनस भी आता है, बट मैं समझा रहा हूँ. इफ अर्थ टेक 365 days to revolve around sun, 1 year basically, mercury take roughly 88 days roughly. That means एक अर्थ के रोटेशन में मरकुरी 4 times रोटेट कर रहा है. मरकुरी को हम बुद्धि भी कहते हैं, दिमाग, बुद्धि, दिमाग कम है जिसे हम कहते हैं. तो ये मरकुरी इतनी तेज रिवॉल्व कर रहा है कि आपका जो दिमाग है वो 24 घंटे कहीं भी भाग सकता है. अगर आप सो रहे हो, किसी ने बेल बजाया, तो आप उठ जाते हो. आप सो रहे थे, कैसे उठते हो? आपका दिमाग उठा हुआ है, नींद में भी काम कर रहा है. ठीक है, अनकॉन्शियस ब्रेन उठा हुआ है. सो मर्क्यूरी बाय डिफॉल्ट इन योर चार्ट विल ऑलवेज बी क्लोज टू सन. सपोज सन यहाँ पे है, तो मर्क्यूरी यहाँ होगा, आगे पीछे से ज्यादा कहीं नहीं होने वाला, बिकॉज वो सन से ही पास ही है एकदम. आप अपने चार्ट्स में देखिए, सब D1 आपको दिख जाएगा. मर्क्यूरी और सन नॉर्मली पास ही होता है. मर्क्यूरी नॉर्मली बहुत केसेस में कंबस्ट ही मिलेगा आपको, रेट्रोग्रेड और कंबस्ट. इट इज वेरी कॉमन. ओके. सो रेट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड का कंसेप्ट मैंने करवाया हुआ है. वैसे भी एक बार करवाया था, कोर्स में करवाया हुआ है. तो रेट्रोग्रेड आपके जब भी होगा उसमें ऐसे एस्ट्रिक लगा होगा या आर लिखा होगा प्लेनेट के ऊपर. सो कई लोग कहते हैं सन और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन है, सो इट इज बुध आदित्य योग, और ये तो बहुत जबरदस्त है. तो ठीक है, इट्स ओके, नॉट बैड, इट्स ओके. बट वो कुछ ऐसा नहीं है बाय डिफॉल्ट मर्क्यूरी सन के साथ ही घूम रहा होता है. तो वो 50% लोगों का होता है. तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सबके सभी राजयोग लेके पैदा हो. वो नॉर्मल है. ठीक है. बट अब आपको देखना होता है कि मर्क्यूरी का रेट्रोग्रेड और कंबस्ट स्टेट क्या है. दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सपोज इनका डिग्री जो है वो ओवरलैप कर रहा है, ये इनका डिग्रीज विद इन 10 डिग्री, रफली रफली 10 डिग्री के डिफरेंसेस में है. सपोज सन इज 23 डिग्री एंड मर्करी इज 15 डिग्री. सो मर्करी को आप कंबस्ट कहते हो. दैट मीन्स कि वो सन के इतना क्लोज आ गया है कि अब उसकी खुद की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है. तो मर्क्यूरी डजंट एग्जिस्ट बेसिकली उस केस में. कंबस्ट का बेसिक मतलब ये होता है कि जो मेन प्लेनेट है वही एग्जिस्ट कर रहा है. सो डिग्री की क्लोजनेस है. सपोज सन इज 28 डिग्री, मर्क्यूरी इज जस्ट 6 डिग्री, तो उसको कंबस्ट स्टेट नहीं माना जाएगा. और कंबस्ट स्टेट एक ही हाउस में होना चाहिए दोनों के दोनों. रेट्रोग्रेड इज अगेन अ प्रॉब्लम. रेट्रोग्रेड इज ऑलवेज अ बिगर प्रॉब्लम. रेट्रोग्रेड का सोल्यूशन करना ही करना है आपको, जिंदगी में कुछ भी हो जाए. एक बार करके देखिए और फिर आप देखिए आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. तो मरकरी का एक छोटा बच्चा है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके चार्ट में मरकरी अकेला है, अलोन है, यानी कि इस हाउस में मरकरी है, इस हाउस में मरकरी है, इस हाउस में मरकरी है, अलोन है, कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो ये बहुत धूम मचाएगा. ये वो वाला बच्चा है जो शादी में आता है और खूब तंग करके जाता है. अब है ना, होता है ना, घर में आता है, आप कहते हो यार शायद कब जाएगा ये बच्चा, परेशान हो गया, बिकॉज वो किसी प्लेनेट के साथ बैठा हुआ नहीं है. अब वो खूब धूम मचा रहा है, उसको कंट्रोल कोई कर ही नहीं रहा. मर्क्यूरी एक वो बच्चा है जो कॉपी करता है, कॉपी पेस्ट, अडेप्ट करता है. तो मर्क्यूरी जिसका है, जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, मर्क्यूरी उसी के जैसा होने की कोशिश करता है. तो इसीलिए सपोज सन के साथ मर्क्यूरी बैठ गया है, तो मर्क्यूरी क्या करेगा, वो सन की तरह बनने की कोशिश करेगा. उस सन, मर्क्यूरी इज थ्रोट, आवाज. आपके जो चक्रास हैं, थ्रोट चक्रा पे मर्क्यूरी है. यहाँ पे स्पीच, ये मर्क्यूरी है. मर्क्यूरी डेबिलिटेड है, एफ्लिक्टेड है, आपका स्पीच का प्रॉब्लम है. अगर आपको स्टैमर करते हो, बोल नहीं पाते हो, रुक रुक के बोलते हो, ये सब मर्क्यूरी का एफ्लिक्शन है, मर्क्यूरी का प्रॉब्लम है आपके साथ. मर्क्यूरी इज ऑल्सो नर्व्स. इसलिए जिनको नर्व पेन होता है, नर्व ब्लॉकेज होती है, पैरालिसिस, ये सब मर्क्यूरी है. इसलिए अगर मर्क्यूरी का एफ्लिक्शन है, मर्क्यूरी अगर डेबिलिटेड है, उसका दशा अंतरदशा आएगा, आपको नर्व पेन होगा ही होगा.
ये ब्रेन में नस हो नर्व ब्लॉक हो गया, पैरालाइज हो गया, ये सब मरकरी है। ठीक है, आपका स्टैमर करते हो, बोल नहीं पाते हो, प्रॉब्लम है बोलने का, बहुत ज्यादा तेज बोलते हो, अनकंट्रोलेबल बोलते हो। होते ना कई लोग 4 ग्रुप में बैठे हुए एक बंदा बोलता ही रहता है, आप कहते हो भैया चुप हो जाओ बहन जी, तो वो सब मरकरी का प्रॉब्लम। ठीक है, तो मरकरी जिसके साथ बैठेगा बेसिकली वो उसको कंट्रोल कर लेगा। अब यही मरकरी अगर बैठा हुआ है लेट सपोज मून के साथ, तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज एक तो मून वैसे ही बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। मून इज योर माइंड, कॉन्स्टेंटली रनिंग, कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग। उसके साथ मरकरी बैठ गया है, अब वो भी कॉन्स्टेंटली 88 डेज में सन को कवर कर रहा है। तो ये दोनों एलिमेंट इतनी तेज भाग रहे हैं, और मैथोलॉजिकली भी दोनों की बनती नहीं है। तो मरकरी मून का जो बंदा होगा ये बहुत लड़ाई करेगा। और अगर ये किसी गर्ल के चार्ट में है, तो फिर तो ये मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की लड़ाई 100% कन्फर्म है, लिख कर ले लो आप। इसलिए अगर आप कुसुमा जी डॉटर इन लॉ ढूंढ रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं होना चाहिए लड़की चार्ट में, ये डिजास्टर है। जरूर जरूर। ठीक है, ये श्योर। मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का श्योर शॉट लड़ाई है ये। हम्म। ठीक है जी। अब इसी केस में सपोज मरकरी का प्रॉब्लम क्या है। अब मरकरी मैथोलॉजिकल स्टोरी वाइज जुपिटर तो फादर नहीं है, बट जुपिटर ने एक्सेप्ट कर लिया मरकरी। ठीक है, जुपिटर तारा मून दैट रिलेशन, इलिसिट रिलेशन, मरकरी हो गए। तो अब इस केस में जुपिटर तो एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज जुपिटर इज ब्लेसिंग गुरु, बट मरकरी एक छोटा बच्चा है, उसको गुस्सा है। तो मरकरी जब भी जुपिटर के हाउस में जाएगा, जुपिटर का हाउस कौन सा, राशि कौन सा है, 9 and 12। दिस इज जुपिटर साइन, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। यहाँ पे मरकरी खूब धूम मचाएगा, गजब धूम मचाएगा, एकदम परेशान कर देगा। यानी कि अगर आपके 9 और 12 में मरकरी है, तो मरकरी का प्रॉब्लम आपको है, अनलेस अनटिल उसके साथ अच्छा प्लेनेट कोई बैठ गया जो कंट्रोल कर रहा है, पर वो तो तंग करेगा आप। इसीलिए मरक्यूरी इज exalted in Virgo and debilitated in Pisces 6 and 12। तो 6 नंबर राशि में मरक्यूरी इज exalted, दैट मीन्स गिव बेस्ट रिजल्ट। एंड 12 नंबर राशि साइन विच इज द साइन ऑफ Pisces, मरक्यूरी इज debilitated, वर्स्ट। 12 इज जुपिटर साइन, वैसे केतु होता है बट ठीक है, अभी वैदिक में ज्योति जुपिटर कहते हैं हम। सो 12th वाले साइन में बहुत गड़बड़ है। अगर आपके 12 नंबर राशि साइन में मरक्यूरी है, आपको 100% प्रॉब्लम है। जिस भी जहां भी बैठेगा मरक्यूरी, वो वाला हाउस खराब कर देगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे बैठा हुआ है तो फ्रेंड सर्कल नहीं बनने देगा, लड़ाई करवाएगा, घर वालों से लड़ाई करवाएगा। यहाँ पे बैठ गए आप, खुद आप ऐसे बोलोगे, कहीं भी कुछ भी बोल लोगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या बोलना है। एनालिटिकल स्किल जीरो, मरक्यूरी इज बुद्धि, एनालिटिकल स्किल्स, दैट इज वाई मैथ्स, मैथमेटिक्स। अगर मरक्यूरी अच्छा है आपका, मैथमेटिक्स अच्छा है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, मैथ्स में नंबर नहीं आए, पिटाई शुरू कर दी बच्चों की, अरे उसका मरक्यूरी अच्छा नहीं है, उसका नहीं आने वाला, उसका प्लेनेट ठीक करो। उसका मरक्यूरी डेबिलिटेड है, एफ्लिक्टेड है, कम्बस्ट है, रेट्रोग्रेड है, उसका मैथ्स अच्छा होगा ही नहीं। जस्ट तो आप उसको पीट पीट के ठीक करने की कोशिश करो, बेचारे की गलती है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का वीनस, वेनस। किसी हेलो। का वीनस खराब है, तो उस नहीं, बंदे का बायोलॉजी खराब है। अब आप क्या करोगे, बायोलॉजी पढ़ना नहीं आता, आप उसका वीनस डेबिलिटेड है, उसको नहीं होगा, उसका ग्रह ठीक करो, प्लेनेट ठीक करो, वो ऑटोमेटिकली अच्छा करेगा। इस तो वेनस के मर्क्यूरी इज मैथमेटिक्स। इसीलिए आप कैट वैट का एग्जाम दे रहे हो, अब कई लोग पूछते हैं मेरा होगा कि नहीं, पहले मर्क्यूरी चेक करो, मर्क्यूरी सही है आपका, मैथ वैथ सही है, तब जाके काम बनेगा। इसलिए मर्क्यूरी इज एनालिटिकल स्किल, मैथमेटिक्स, कैश फ्लो, बिजनेस, फ्लो ऑफ मनी, एवरीथिंग इज मर्क्यूरी। पैसा, सब कुछ मर्क्यूरी है। नहीं, हेलो, ये वेनस के साथ पाइसेस में होगा तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या? हेलो। सो ओके, राम, राम आई एम सीइंग फर्स्ट टाइम एक्चुअली। आप पहली बार आए राम? हो रहा है? आई कांट हियर यू। एनीवेज,
अब मर्क्यूरी समझना है आपको कि आपके चार्ट में कैसा है, मोटे मोटे तौर पर, रफली रफली। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल, जस्ट बेस्ड ऑन वन प्लैनेट पोजीशन तो उतना नहीं होता, बट आपको रफली अंदाजा हो जाए खराब कैसे है, वो समझना जरूरी है। तो ये मीन राशि में, हेलो, ये मीन राशि में वेनस के साथ होगा तब भी प्रॉब्लमेटिक ही है क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? आप पहले तो सेशन देख के आइए सारा का सारा, आपको तो पहले तो अपना ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसी में घुसे हुए, जुपिटर यहाँ पे, वीनस यहाँ पे। पहले तो आप चक्रा ठीक करो अपनी, तब जाके इस पे आओ। मर्क्यूरी की दो साइन है, 3 और 6, जेमिनी एंड वर्गो। वर्गो मर्क्यूरी इज एक्सॉल्टेड, Sagittarius and Pisces, Mercury is not that great comfortable. Pisces debilitated. Okay, Reena ji, this is my first time. Okay, no issue, no issue. It's okay. You can raise question also. It's okay. So आपका मर्क्यूरी देखना है कि मर्क्यूरी कैसा है। अगर 9th और 12th में, सपोज 12 नंबर साइन पे यहाँ पर है, प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, बिकॉज 12 नंबर डेबिलिटेड है, उस हाउस को ही खराब कर देगा, बच्चे खराब कर देगा, होंगे नहीं होंगे तो फिर स्पेशली एबल्ड कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे देगा आपको। यहाँ पर अगर डेबिलिटेड है, यहाँ पर अगर मर्क्यूरी है और डेबिलिटेड है, एफ्लिक्टेड में है, तो ये आपको प्रोजेनी इशू भी देता है, स्पेशली गर्ल्स में है तो 100%। अगर सैटर्न के साथ आ गया, राहु के साथ आ गया, प्रॉब्लम देगा आपको, बिकॉज मर्क्यूरी इज ऑल्सो सिम्बलाइजेस बाय एनंच, तो आपके प्रोजेनी इश्यूज दे देगा आपको। तो डेबिलिटेड है, एफ्लिक्टेड है और मेलेफिक्स का एस्पेक्ट है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपको प्लेनेट जो है प्रोजेनी इशू दे देगा आपको, क्योंकि अब आपके अंदर संतान उत्पत्ति की एबिलिटीज ले लेगा वो आप, इनंच। तो दिस इज द साइन जहां पर आपको मेक श्योर करनी, यहाँ पे मर्क्यूरी तो होना ही नहीं चाहिए। 12 नंबर बर्बाद है मर्क्यूरी, बिल्कुल खराब, बिकॉज 12 इज द हाउस ऑफ एक्सपेंस, और आपको मर्क्यूरी वहां बैठ गया तो खर्चा ही हो जा रहा है अब आपका, हॉस्पिटल में ही खर्चा करे जा रहे हो आप, इधर उधर खर्चा करे जा रहे हो। तो मर्क्यूरी इज योर मनी, और आपने वो खर्चे के घर में बिठा दिया है, तो उसका एक्सपेंस ही होता रहेगा, सेव तो कर ही नहीं सकता है बंदा कभी पैसा। ये प्रॉब्लम है इसमें। मर्क्यूरी सबसे इंपॉर्टेंट, बस ये 3 जगह है जहां पे आपको मेक श्योर करना है मर्क्यूरी का प्लेसमेंट। दिस इज रियली बैड, एक्सपेंसेस, और ये इम्पोर्टेंसी का इशू दे देगा आपको अगर डेबिलिटेड है, और स्पेशली अगर मेलेफिक एस्पेक्ट है सैटर्न का, केतु का, देगा। 6th हाउस, ये बंदा लड़ता ही रहता है, क्योंकि ये 6th हाउस में बैठा हुआ है, ये एनिमीज पैदा करने में बहुत ही मास्टर है, बिकॉज 6th हाउस क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, RRS, रोग, योर डिजीज, ऋण, डेथ, एंड शत्रु इज एनिमी। सो मर्क्यूरी वहां बैठा हुआ है, तो आप बोल बोल के एनिमीज बनाओगे अपने। तो इस बंदे को बोल बोल के अपने, क्या कहते हैं, दुश्मन बनाने का शौक है। ये लड़ाई करता रहता है हर जगह। कुछ लोग होते हैं, देखा है आपने, पेट्रोल पंप में क्या लड़ाई कर रहे हैं, मार्केट की लड़ाई कर रहे हैं, बिन बात की लड़ाई हो रही है, 10 रुपीज की लड़ाई कर रहे हैं, बहस करे जा रहे हैं किसी रिक्शा वाले से। ये सब ये है मर्क्यूरी। 8th हाउस मर्क्यूरी इज नॉट दैट ग्रेट, नॉट एट ऑल ग्रेट, बिकॉज 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ डार्कनेस। सो जिसका 8th हाउस में मर्क्यूरी है, यहाँ पे है, D9 में है, वगैरह वगैरह, उसके साथ प्रॉब्लम है, स्पीच डार्कनेस में है। दैट मीन्स उसे कब बोलना है, कितना बोलना है, उसको वो प्रॉब्लम है। वो एक ही बात को मल्टीपल टाइम बोलेगा, OCD का इश्यू होगा इसको, और वो एक टॉपिक है उस पर 10 बार क्वेश्चन पूछेगा। 8th हाउस मर्क्यूरी, ये प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक करना है हर हाल में। ठीक है, यस स्मिता जी, ओके। Sir, is Mercury also related with friendships or friends? नहीं, वो मार्स से है आपका, एक्चुअली मेनली मार्स से है Okay. आपका मार्स जितना अच्छा है, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, और मार्स आपका खराब है तो फ्रेंड सर्कल खराब है। ओके, सो फार मर्क्यूरी का क्लियर हो गया आपको?
तो मरकरी अगर आपका 6 में है, 8 में है, 12 में है, तो आपको इसका जेमस्टोन पहनना है हर हाल में। इसका जेमस्टोन है एमरल्ड। एमरल्ड ये आपको हर हाल में पहनना है, अनलेस अनटिल दीज टू राशि साइंस जेमिनी एंड वर्गो, ये यहां पर नहीं होना चाहिए। 3 and 6, 3 and 6, 3 and 6, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 and 6 राशि नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 and 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 and 6 लिखा हुआ है, तो आप एमरल्ड नहीं पहन सकते। बट अगर राशि कोई भी है 3 या 6 के अलावा और आपके मरकरी यहाँ पे है, तो आपको 100% एमरल्ड पहनना है हर हाल में, वरना इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है वरुण, यू आर देयर? वरुण, नो यू आर नॉट देयर, यू लेफ्ट। अरे नहीं, यू आर देयर, ओके। No, no, I'm here. Yes, sir. ओके, सो वरुण आपको एमरल्ड पहनना है हर हाल में, अनलेस एंड आप 3 6 3 6 3 6 है। नहीं, मेरे 9 है सर, इन 8 हाउस, या दैट इज वर्कआउट। ओके, इनमें 3 6 3 6 3 6 नहीं होना चाहिए बस। नहीं है सर, नहीं। तो आपका 6 8 12 में कहीं भी मरकरी है, आपका यहाँ पे वैसे और अगर मरकरी कहीं भी हो तब भी नहीं पहन सकते, अगर यहाँ नहीं पे पहन 3, सकते। यहाँ पे राशि नंबर 3 6 3 6 नहीं आना चाहिए बस। पर मरकरी कहीं भी हो अगर। हाँ कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो रेट्रोग्रेड है, कंबस्ट में तो नहीं पहन सकते। रेट्रोग्रेड है, उसमें पावर नहीं है। पावर कैसे पता करते हैं? उसकी डिग्रीज कम है। अब मर्क्यूरी आपका बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा है, यहाँ पे बैठा हुआ है, इट्स अ गुड पोजीशन, और यहाँ पे उसका डिग्री 6 डिग्री है, तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बल नहीं है, तो आपको उसे स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है उसका 3 6 कहाँ पे, पर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आप उस हाउस को भी एक्टिव करोगे और उसको भी बल दे दोगे। ठीक है, और अगर आपके मर्क्यूरी का प्रॉब्लम है, तो आप आपको स्पीच का इश्यू है, मर्क्यूरी का प्रॉब्लम है, आपको फोकस का ज्यादा इशू हो रहा है, आपको कंसंट्रेशन में इशू हो रहा है, एनालिटिकल स्किल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, सो यू कैन ऑल्सो वेयर रुद्राक्ष। मर्क्यूरी का रुद्राक्ष होता है 4 मुखी। ओके, 4 मुखी रुद्राक्ष। 4 मुखी रुद्राक्ष के डीटी है ब्रह्मा, ब्रह्मा, सरस्वती, विद्या, सो मर्क्यूरी बुद्धि। विद्या जी आप हैं अभी? विद्या महेश? ओके Sir, tell me, sir. ओके, तो फन My फैक्ट, work, विद्या जी की वजह से फन फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। सो मर्क्यूरी इज एक्सॉल्टेड इन विच साइन? Virgo. ओके, अभी वो हैंडराइटिंग, आई एम एक्चुअली एनर्जी बहुत कम है आज मेरा, तो हैंडराइटिंग को जरा माफ करिए। सो मर्क्यूरी इज एक्सॉल्टेड, दैट मीन्स मर्क्यूरी गिव्स बेस्ट रिजल्ट इन विच साइन? वर्गो। Virgo. Yes. वर्गो का नक्षत्र कौन कौन से हैं? Chit- Uttara, अंकुर जी, Hasta, Uttara, and Chitra. अंकुर जी ध्यान से देखिए, फैसिनेटिंग है। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्ता एंड चित्रा, Yes. राइट? Yes. ध्यान से देखिए, फन फैक्ट, मर्क्यूरी सबसे बेस्ट रिजल्ट कहाँ देता है? वर्गो में देता है। वर्गो कवर्स 3 नक्षत्र बेसिकली, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र। ओके, Yes. नाउ कंसिडर द एनिमल साइंस ऑफ दीज नक्षत्र। Cow. Buffalo. Tiger. काओ, बफेलो, टाइगर। Hmm. आपने एक ऐसा डीटी है मर्क्यूरी के लिए जो बेस्ट है, जो टाइगर पे सवार है, वो बफेलो का मर्डर कर रहे हैं, और कौन है? काओ, माँ समान, मदरली, माँ दुर्गा। Hmm. That's how you have considered a deity, माँ दुर्गा। deity should be motherly, killing the buffalo, Mahishasur. The माँ दुर्गा, that famous photo where माँ दुर्गा is killing Mahishasur, buffalo head, and किस पे सवार है? टाइगर पे। ये तीनों कॉम्बिनेशन किसके हैं? दुर्गा माता। कुसुमा जी, फैसिनेटिंग, अच्छा है। Beautiful, So, sir. Beautiful.
बहुत So this is how, if you want to specify Mercury, Ma Durga is the deity. okay. ओके, बिकॉज माँ दुर्गा जो डीटी है वो इन नक्षत्र में इस साइन को सिंबलाइज कर रही हो, इस साइन में मरकरी बेस्ट है। सो यू आर ट्राइंग टू बूस्ट मरकरी, और आप इस साइन की तरफ ला रहे हो, वर्गो की तरफ ला रहे हो कि इसकी एनर्जी को एक्वायर करो, बिकॉज इस एनर्जी की डीटी माँ दुर्गा है। अंकुर जी 100%। सही है। बस हाँ, बिल्कुल सही है, डेटी वाइज बिल्कुल सही है। बस इतना है कि अगर ये सिंक हम चार्ट में इष्ट के साथ में देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है, एंड देन फिर डिपेंडिंग ऑन द पाथ, राजसिक है तामसिक है, एंड उसके हिसाब से फिर वो डेटी को और फाइनल करते हैं। हाँ, मतलब बाय डिफॉल्ट तो माँ दुर्गा इज फॉर हाँ मरकरी। जी, हाँ जी, आई हाँ एम जी, जस्ट हाँ जी, सो बिल्कुल बाय बिल्कुल डिफॉल्ट तो करेक्ट। आपको इट्स लाइक कि केतु बाय डिफॉल्ट गणेश है, वो कुछ भी करो। बाकी अंकुर जी कह रहे हैं कि चार्ट स्पेसिफिक क्या है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो चार्ट क्योंकि उसको स्पेसिफिक होता है डीटी। फर्दर डिपेंडिंग ऑन पर्सन प्रॉब्लम कि किस तरह का प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से फिर अब अगर इसको 10 महाविद्या में हम ले जाके फर्दर इंटरप्रेट करें और उस डेटी को फिर परस्यू करें सही विधि के साथ में, तो वो प्रॉब्लम से आप दूर। काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब अपनी जो बातें होती हैं टिपिकली, बट primarily दिस इज परफेक्ट, नो डाउट अबाउट इट, सिंप्लीफाइड। अब जो मर्क्यूरी है, इनके सॉल्यूशंस तीन जैसे बता दिए। वन इज द एमरल्ड, यू हैव टू वेयर एमरल्ड इफ इट इज फॉलिंग हियर 6, 8, 12 और एनीवेयर इन द चार्ट। बट द राशि साइन जेमिनी एंड वर्गो शुड नॉट बी ऑन द 6, 8 एंड 12। यहाँ पे 3, 6, 3, 6, 3, 6 राशि साइन नहीं होना चाहिए, तो आप एमरल्ड पहन सकते हो। अगेन यू हैव टू सी द कंजक्शंस ऑल्सो, ऐसा ना हो कि वो किसी केतु के साथ बैठा है, राहु के साथ, तो देन दिस इज व्हाई यू हैव टू डू कंसल्टेशन बेसिकली। बट इन जनरल अगर वो अकेला बैठा हुआ है तो आप एमरल्ड पहन सकते हो। इस पे पहनते हैं, इस पे एमरल्ड, और हमेशा गोल्ड में पहनते हैं, दैट इज बेस्ट बिकॉज सन एंड मर्क्यूरी इज ऑलवेज टुगेदर। देन रुद्राक्ष फोरमुखी, फोरमुखी सिंबलाइजेस डीटी ब्रह्मा स्लैश सरस्वती, ज्ञान, एनालिटिकल स्किल्स। सो उससे हमने, रुद्राक्ष का कोई भी प्लैनेट नहीं होता, रुद्राक्ष के डीटीज होते हैं, और उन डीटीज के बेसिस पे हमने प्लैनेट एज्यूम किए। सो माँ सरस्वती बेसिकली हमने एनालिटिकल स्किल, कंसंट्रेशन, फोकस। सो मर्क्यूरी, अगर आप में से किसी के भी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बताया था ये, तो 4 एंड 6 मुखी रुद्राक्ष आंख बंद करके पहना दीजिए, ठीक है प्रिया हरिदास जी? 4 एंड 6 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। ये फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, ये जो बार बार इधर दिमाग चला जाता है, इसको ठीक करेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, इसको पहनाना है आपने। यस, किसी ने हैंड रेस किया था क्या? So where can we get the right Rudraksh? Where do we buy it from? राइट रुद्राक्ष, वो तो Nep- you will get it Nepal. from shops actually. No, as in but people say the but by original default you have to buy Nepal Rudraksh by default. You can try Java Rudraksh also, the Indonesian one. I have tried it, मुझे कभी अच्छा लगा नहीं, but it's okay, it might be my experience. You can try it. मतलब it is a cheaper option, but by default 4 and 6 are not very expensive ones. So if you want to buy, you should always buy Nepal beads. Java bead, you should only go for higher beads like 14 mukhi, 15, 16, 17, like this, because वो बहुत expensive है. Till 13, 12 mukhi it is okay, affordable होता है वो, 8,000, 10,000 bucks में आ जाता है INR. So that is affordable, you can always buy it. No, not ठीक the है ना? तो expensive. हमेशा Something. नेपाल रुद्राक्ष को आपने प्रेफरेंस देना है हर हाल में, अनलेस अटिल वो पैसे का इश्यू है, योर बजट इज लो, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर नेपाल रुद्राक्ष आपका इमीडिएट रिजल्ट देता है आपको, यू विल इजीली फील इट। एंड बाय डिफॉल्ट अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो 5 मुखी रुद्राक्ष यू शुड ऑलवेज वेयर, ऑलवेज, नो मैटर व्हाट, ये आपके लिए सबसे अच्छा है, बिकॉज 5 मुखी बैलेंसेस योर 5 एलिमेंट्स इन योर कॉस्मिक ऑरा बॉडी। 5 एलिमेंट्स को
बैलेंस कर देता है, इसलिए जुपिटर से रिजेंबल किया जाता है, इसलिए ये सबसे अच्छा है। तो आपको कुछ समझ नहीं आता ये तो पहनना ही चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स वो इंडिविजुअल चार्ट बेसिस पे होता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू। रुद्राक्ष का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, तो आप पहन सकते हैं। जेमस्टोन का नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसलिए बी वेरी कॉशियस। अगर आपने एमराल्ड पहना है और आपका मर्क्यूरी अच्छा नहीं है, प्लेस रॉन्ग कंजक्शंस में है, रॉन्ग हाउसेस में है, इमीडिएट नर्व इश्यू हो जाएगा, आपको बैक पेन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मर्क्यूरी का इश्यू होता है। दैट इज वाई बहुत ज्यादा कौन, अच्छा, मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा कौन बोलते हैं? अभी अभी वो क्या कहते हैं, जेंडर इक्वालिटी वगैरह को साइड कर Female. देते हैं थोड़ा सा। मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा कौन बोलते हैं नॉर्मली? हु लव्स टू टॉक? Female. फीमेल, राइट। तो ये मरकरी का अगर आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अनकंट्रोलेबल बोल रहे हो, कुछ लोग बहुत अब्यूसिव होते हैं, है ना, बहुत लैंग्वेज का इनको इश्यू होता है, बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, ये जो भी स्पीच का इश्यू है, ये मर्क्यूरी एफ्लिक्शन दिखाता है। दैट इज वाई फीमेल्स के केस में थायराइड का इश्यू सबसे प्रोमिनेंट है। ठीक है, फीमेल्स को थायराइड बहुत कॉमन है, मेल को नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मेल को चिल्लाने की जरूरत नहीं, वो तो फिजिकल एक्शन से ही अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। वो गलत है, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट। बट फीमेल का प्रॉब्लम क्या है, या तो बहुत ज्यादा बोल देंगे या बोलेंगे नहीं और इसको स्ट्रेस करते रहेंगे कि मैं बोल नहीं पा रही। यू विल ऑलवेज फाइंड इट इज अ प्रॉब्लम, मेनी फीमेल दे कम एंड से हम बोल नहीं पाते, हमारा ये प्रॉब्लम है एंड ऑल। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, अपने अंदर रखा हुआ है, तो आपका थायराइड का प्रॉब्लम देगा 100%। इसलिए फीमेल्स में थायराइड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, एंड दैट इज वाई मर्कुरी एफ्लिक्शन हो जाता है फीमेल्स में इवेंचुअली। दैट इज वाई फीमेल इज इनंच, ओनली फीमेल अचीव स्टेट ऑफ मेनोपॉज। इवेंचुअली वो थायराइड हो गया, मेनोपॉज स्टेट आ गया। इन केस ऑफ मेल देर इज नो कंसेप्ट ऑफ मेनोपॉज। ओके, तो दैट इज नेचुरल, ये नेचर में दिया है हमें। तो फीमेल्स एंड मेल्स वो जेंडर इक्वलिटी नहीं होता, ये दोनों अलग आइडेंटिटीज है। दे आर डिफरेंट, बोथ डिफरेंट, इसमें ऊपर नीचे वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। बोथ आर यूनिक, नेचर हैज क्रिएटेड टू टाइप ऑफ एनर्जीज, और उनका एक अपना कंसेप्ट है वो बनाने का। ये साइकिल है, नेचुरल साइकिल है। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? आई थिंक वी आर डन, अंकुर जी। आई थिंक मेजरली ओवर मतलब बेसिक्स तो वी हैव कवर्ड, और इज देयर एनीथिंग आई लेफ्ट? ना जी ना, परफेक्ट। यस, ऐसे एनी तो क्वेश्चन सो the फार? यू deeper हैव we एनी go the डाउट? less it is। सॉरी सॉरी, आप बोल रहे थे कुछ? मैं ये कह रहा था जितने डीप जाए उतना कम है ऐसे तो। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, आज मेरा थोड़ा एनर्जी भी कम है, बट आई थिंक नहीं वी नहीं, हैव सही डन, है, आपके स्टिल लेक्चर्स कवर्ड भी अ बैक टू लॉट। बैक। राइट राइट, दिस प्रीटी डिसेंट। यस, कृष्णा, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? शुड वी कंक्लूड? All good, sir. Yes, we can Any conclude. यस, anything विधि? we should interestingly know about dashas of Mercury or any interesting fact about it? अरे अभी मैंने अभी माँ दुर्गा का इतना अच्छा फैक्ट बताया, आपने तारीफ तो करा नहीं मेरे। वो तो नहीं नहीं, बहुत मजाक कर रहा fascinating वो है कि कैसे आपने हूँ। वो किया, वेरी हाँ, वो ऐसे ही नाइस। है, वो सबका भी धीरे धीरे। ईच प्लेनेट आई विल पिक एंड आई आपका एक्सप्लेन मरकरी हाउ वी हैव बहुत अच्छा डिफाइंड है। डीटीज। हाँ जी। आपका मरकरी बहुत अच्छा है। नहीं Then नहीं, मेरा मरकरी मरकरी मेरा, अभी मैं बताता हूँ कैसे अच्छा है। विधि ने बोला मेरा मरकरी अच्छा है। अभी जो है मानिक जी बोल रहे थे मेरा जुपिटर, या मेरे को सबसे बड़ा गुस्सा इसी पे आता है जो वैसे आप पूछते हो। तो मेरा मरकरी यहाँ पे है, जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, और नंबर है 9। ठीक है, ऊपर से वो रेट्रोग्रेड है, और मैंने कुछ नहीं पहना हुआ। वो क्या बैठा है, कौन बैठा है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? आप अपने चक्रास को ठीक कर लो, अपनी फ्री विल पर फोकस करो। प्लेनेट जैसा भी बैठा है, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। जिंदगी ऐसे जीनी है, मरते वक्त जब यमराज आएंगे ना, कहना है कि भाई बहुत अच्छी थी जिंदगी। ठीक है, आपके मुंह में सिगार होना चाहिए, यमराज से को लाइटर है क्या? ये जिंदगी जी के जानी है आपने, और कहना है दोबारा मिलेगी, दोबारा जीऊंगा, इतनी अच्छी जी है मैं। तो 100%। ये कैसा बैठा हुआ है, इट डजेंट मैटर। ठीक है जी,
आपको जिंदगी ऐसे जीनी है, जो लास्ट दिन होगा ना, आपने बोलना है यमराज को 2 मिनट बाद आना, अभी तो आई एम वॉचिंग नेटफ्लिक्स है, थोड़ी देर बाद आना है। तो आपको फ्री विल से क्रास को इतना अच्छा अलाइन कर लेना है कि आपका चार्ट प्रारब्ध 12% ऑफ योर प्रारब्ध वो इरेलेवेंट हो जाए। योर लाइफ 12% इज प्रारब्ध, 88% इज फ्री विल। तो आप 88% पे फोकस करो, अपने को ऐसा बना लो कि प्लेनेट से फर्क ही नहीं पड़ता। सो माई मर्क्यूरी इज इन द थर्ड हाउस, सेजिटेरियस साइन, सिटिंग विद जुपिटर एंड रेट्रोग्रेड वर्थ। लो बहुत बिल्कुल ही बेकार। अब मैं मर्क्यूरी को ऐसे कहता हूँ, ठेंगा दिखा रहा हूँ, ये लो कर लो जो करना है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, आप अपने फ्री विल से अपनी चक्रास को अलाइन करिए, अपनी कॉन्शियसनेस पर काम करिए। वो प्लेनेट आपको तंग नहीं करता। प्लेनेट इसलिए नहीं बना कि वो आपको तंग करेगा, वो ऐसा प्लेस्ड है कि वो आपको चैलेंज देगा। इफ यू कैन ओवरकम द चैलेंज, वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपने प्रारब्ध काट लिया है, एंड ऑफ डिस्कशन। उसका एजेंडा ये थोड़ी है कि आपकी लाइफ को हेल बना देना एकदम। आप अपने को ठीक कर लो, अपनी कॉन्शियसनेस इतनी अच्छी कर लो कि वो प्लेनेट आपको तंग ही ना करे। ठीक है, एट्थ हाउस से लोग इतना डरते हैं। एट्थ हाउस, ओशो के एट्थ हाउस में 4 प्लैनेट्स थे। ठीक है, चलिए, सो आई थिंक वी शुड कंक्लूड नाउ, अंकुर जी। हाँ जी, बढ़िया। चलिए, This is सो good आई enough. थिंक, आई होप, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इट वाज इंफॉर्मेटिव सेशन। आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कोशिश करिए कि अपने चक्रास पर वर्क करिए, अपने कॉन्शियसनेस पर काम करिए, और इस 12% से ऑब्सेस मत होइए, इससे अवेयर होइए। यू मस्ट नो योर चार्ट वेरी वेल, कि मेरा रीडिंग्स क्या है, व्हाट रेमेडीज आई शुड डू, सो आई कैन अलाइन माय चार्ट बेटर, सो आई कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। एंड फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउसेस को एक्टिवेट कीजिए ब्लेसिंग से। और कुछ समझ नहीं आता तो किसी एक गुरु को पकड़ो जो बिल्कुल डांट डांट के आपको ठीक कर दे। ठीक है, Sir, before you leave, I asked one question in the chat, but ओके। I guess it was not seen. आपने बोला, कैन यू आस्क नाउ? आई डोंट नो, आई डोंट सी चैट एक्चुअली, yeah, इट्स no वेरी worries, डिफिकल्ट no फॉर मी। worries. I can ask now. So the ओके, question was, you said कि emerald को हमेशा gold में पहनो. So my question was, what if somebody's sun is not that powerful? It's not like it's not for you. Like 12th में sun बैठा है, तो फिर वो emerald चांदी में पहनना है कि still, because no, why that is do you okay, wanna enhance? that is okay, you can still wear, it's okay, but if your gold is basically Jupiter, Hmm. so Okay. it is okay, you can always wear in gold, it is Thank absolutely you. okay. Thank ठीक है, you. but Thank you. if you hold any doubt, this I'm telling you in general, because this is a very common question, this gemstone we should wear in which metal, ये वाला मेटल सूट कर दे, बेसिकली दिस इज योर डाउट। ओके, सो अगर आपको इन जनरल कभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सो ऑलवेज चूज अष्ट धातु, 8 एलिमेंट्स, 8 मेटल्स, अष्ट धातु। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट द मेटल, so this is general, you So need not where to do you ask get anyone. that, sir? That jeweler or from where you're buying, he knows everything, don't worry. Ashtadhatu. Okay, thank you. Yeah, वो एक Thank you. अष्ट धातु is basically mix of 8 metals, Mm-hmm. elements, so Okay. वो बैलेंस कर लेता है, ब्रास, कॉपर, एटसेट्रा, वट एवर। सो 8 मेटल्स को वो इकट्ठा कर लेगा, उसमें थोड़ा गोल्ड डाल देगा, थोड़ा सिल्वर डाल देगा, सो 8 मेटल्स आ जाएंगे, अष्ट धातु। If you are Thank you. confused, Thank you. otherwise wear in gold, Yes. it's okay, it will work. And Thank you. gemstone, you should only, Reena ji, you should only wear gemstone which is very very high quality. If you're talking about emerald, the Colombian and Zambian, good. लोकल तो पहनना ही नहीं है। जेमस्टोन कभी भी सस्ता नहीं पहनना। दिस $100 स्टफ, 10,000 रुपीज का, ये कभी नहीं पहनना, बिल्कुल बेकार है। ओके, Okay. जेमस्टोन जब भी पहनना है, यू मस्ट वेयर रियली गुड क्वालिटी जेमस्टोन, बिकॉज जेमस्टोन हाउ इट वर्क्स। So this is my first time here. I don't even know. I just joined through WhatsApp. Do you also see charts? रीना जी, चार्ट्स अगर आपको करना है, अंकुर जी एंड स्मिता जी इज बेस्ट, मैं तो बहुत डांटता हूँ। Oh, okay. So, आप अभी अब मेरा सेशन देखेगा, आप समझ जाओगे।
सो आपको एस्ट्रोलॉजर का गुरु ज्यादा मिलेगा उसमें. I But appreciate anyways, that. वो चार्ट रीडिंग होता है in the WhatsApp community. You can join the chart group also. It's okay. It's fine. We read there. Just to Thank answer you. your question. Okay. So you can join the Mm. community. Maybe you just join the one group. There is a community you can join from where de facto you will be directed to the chart group. Okay, got it. Thank So you. you can raise queries. So this is gemstone basically. Gemstone is a lens. Now this is your cosmos. Sun, planet, Earth, etc. Venus, whatever. This is your body. So in your finger you're wearing a gemstone. अभी यहाँ से जितने भी photons आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं. So उनका जो एनर्जी वो डाइवर्टेड है, right? Because it is receiving photons from multiple angles. So then what is the purpose of lens? It will direct like this. All the photonic rays will be directed in one way. So उसका power बढ़ जाएगा, strength बढ़ जाएगा. That is the purpose of gemstone. That is why it should be transparent. It should not be opaque. The more cheaper it is, more opaque it is. It is a problem. If it is opaque, वो क्रॉस ही नहीं करने दे रहा, फिर वो ट्रांसपेरेंट होने के बदले हो जाएगा ट्रांसलूसेंट. प्रॉब्लम ये है ट्रांसलूसेंट की कि इट विल गिव यू साइड इफेक्ट्स. सो एमराल्ड, बी वेरी केयरफुल इफ यू आर वेयरिंग एमराल्ड एंड इट्स अ चीप वन, बैड क्वालिटी, उसमें कुछ अंदर कुछ रेशे वेशे एक्सेट्रा जो भी होता है, तो आपको Cheap नर्व one, प्रॉब्लम दे देगा बैक में आपको. cheap one is only stone. There's nothing gem about it. चीपर तो कुछ होता है, वो स्टोन ही है, पत्थर ही है, जेमस्टोन तो ही नहीं वो. सो वो आपको नर्व प्रॉब्लम दे देगा, बैक पेन दे देगा, और वो ठीक नहीं होगा इजीली. ठीक है. किन्होंने पूछा था? रीना जी ने पूछा था. रीना जी, ओके, Anji. अंडरस्टूड. सो बी Yes, I वेरी got it. केयरफुल. Thank you. एंड Thank फ्रॉम you. जहां से भी कंसल्टेशन लेते हैं उनको एमराल्ड का फोटो जरूर दिखा दीजिए. Got it. Thank you. All right, so thank you so much, and I hope it was informative session. Again, I'm repeating the same thing. Take care, and we will meet again next weekend. Thank you. Okay, bye bye. Thank you very Thank much, sir. you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you.